The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects, nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. A very good morning to one and all present here. I, Dr. Manmeet Kaur, Associate Professor and Academic Coordinator, DME Media School, welcomes you all to the second day of Session Orientation Program, SOP 2022, organized by DME Media School at Delhi Metropolitan Education, Noida. The Session Orientation Program 2022 is being organized for the batch 2020 fifth semester students, marking the commencement of their final year in DME Media School. Before moving ahead, I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our audience. It is a premier A-grade institution affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University and approved by the Bar Council of India. DME Media School is one of the schools in DME and one of the most promising media institutes. It offers BA GMC in journalism and mass communication and recognized as the school focused on the growth of its faculty members and students through academic and co-curricular activities. The major flagship events of DME Media School and initiatives are BG Varghese Lecture Series, Peer-to-Peer FTP, International Film Festival SIFI, International Media Conference ICANN, Vritika, a convention of media students, and newly added to the list is Vibrant India Series. I would like to inform everyone here that all the sessions of Session Orientation Program will be available on DME TV. It is an official YouTube channel of DME. So the today's session is based on the subject Film Appreciation. The subject itself defines the importance and significance of cinema in our social structure. Through this session, the students will be apprised about the subject in terms of understanding and analyzing the various cinematic elements. We have with us today the expert of the session, Mr. Prince Shadwell. He is an aspiring film director and writer having an experience of more than 10 years in the Indian film industry. He has worked in direction and editing departments on many commercial films like Tanu Weds Manu, Force, Dam Maro Dam, Nautanki Sala, and D-Day. Working in different capacities on different films has helped him in attaining a better understanding for the medium. He has done the film appreciation course from FTII and has been an avid lover of world cinema since then. He has conducted film appreciation workshops in various colleges in the last few years. On the professional front, he wrote a short film Dhaga, which was screened and awarded at many Indian and international film festivals. He was also the associate director on the acclaimed Marathi film Baba, released in August 2019. And recently, he directed a short film starring Raghuveer Yadav named Bhaskar Bechain. Welcome, Prince, to the Session Orientation Program by DME Media School. And we are looking forward that students and faculty members also will be benefited from this session. Now, I request Mr. Prince to please take the session further. Thank you, Manmeet. So, can I see these students? Are they in the studio, right? Yeah, they are in the studio, as well as few students have joined from the remote location through online mode. Okay, so usually, whenever I do film appreciation workshops, so it's an interactive session because film appreciation is a practical thing to do. It's not a theory class.
So this would be a little difficult because I can't talk with the students directly, but I hope everyone will be eager to participate. So okay, so this is a third year students, right? Yeah. ओके, तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब फिल्म्स में इंटरेस्ट रखते हैं और रेगुलरली फिल्म्स देखते हैं. अदरवाइज लाइक जैसा टॉपिक है फिल्म अप्रिसिएशन, बिना फिल्म्स के फिल्म अप्रिसिएशन नहीं हो सकती है. और थर्ड थर्ड आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर में इन्होंने प्रोडक्शन किया होगा, वीडियो प्रोडक्शन भी किया होगा. तो आई एम श्योर कि जो थ्योरी नॉलेज है जो फिल्म्स की, वो फिल्म्स की समझ होगी, इनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, इंटरेस्ट होगा. तो मैं बेसिक में नहीं जाऊंगा, मैं आई विल जस्ट जंप टू द लाइक फिल्म अप्रिसिएशन पार्ट. ऑलराइट. तो अच्छा, जो भी कोई स्टूडेंट मुझे एक बार फिल्म की डेफिनेशन बता सकता है, उसके लिए फिल्म का मतलब क्या है? एनीवन? सर, जो एक स्टोरी जो हम प्ले हो रही है मूविंग पिक्चर के थ्रू, हम एक स्टोरी को एक टेलीविजन या थिएटर पे जब देखते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ पिक्चर मूवी. ओके. सो हिमानी, लाइक जो तुमने बोला बिल्कुल ठीक है. बस इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फिल्म हम जब बोलते हैं तो इट्स अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जहाँ पर हम फिल्म की बात करते हैं. क्योंकि अब हम मतलब फिल्म के बहुत सारे आप सिनोनिम्स हैं, मूवी है, सिनेमा है. तो आज के टाइम पे फिल्म जो है वो फिल्म रह नहीं गई है, बिकॉज वी आर नॉट शूटिंग ऑन फिल्म एनीमोर. जो सेल्यूलाइट था वो फिल्म होता था. तो अब हम लोग वीडियो पर शूट करते हैं, लेकिन हम उसको फिल्म ही बोलते हैं. और हम थिएटर में नहीं जाते हैं, हम ओटीटी पर देखते हैं, तब भी हम उसको सिनेमा बोलते हैं. तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जितनी जो फिल्म का जो कॉन्टेक्स्ट है वो लगातार बदलता गया है, लेकिन जो नहीं बदला है वो है स्टोरीज और कैरेक्टर्स. वो हमेशा से सेम रहे हैं और अभी भी बदल रहे हैं लगातार. तो हमें कल को नहीं पता कि और क्या होने वाला है. जैसे जितनी भी अब जो 3D फिल्म्स हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बदल दी हैं. जो डायरेक्टली हम ये ग्लासेस लगाते हैं और वी आर इन अ वर्चुअल वर्ल्ड. तो नेक्स्ट स्टेप है फिल्म्स का, वो है जहाँ पर हम लोग एक अलग दुनिया में पहुँच जाएंगे, लेकिन तब भी उनको हम फिल्म ही बोलेंगे, उनको हम सिनेमा ही बोलेंगे. तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि इट्स मूविंग इमेजेस और स्टोरी टेलिंग. सो दैट्स द कोर पार्ट ऑफ इट. ओके. सो ओके, तो अदरवाइज आपको क्या लगता है, जैसे जो भी फिल्म्स हैं, फिल्म्स में और मूविंग इमेजेस के अलावा और क्या होता है, और कौन से आर्ट फॉर्म्स हैं, अगर आपको बोला जाए एक फिल्म जो है फिल्म, और कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं? टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं मुझको लगता है. डांस फॉर्म, म्यूजिक फॉर्म. राइट. सो फिल्म्स जो है वो अपने आप में एक स्पेशल मीडियम है, बिकॉज वो एक सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है. जितने भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, उसमें आपके डांस है, म्यूज़िक है, थिएटर है. थिएटर जो अपने आप में बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स का मिक्सचर है. देन देयर इज स्कल्पचर, जो आप आर्ट डायरेक्शन करते हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करते हैं, पेंटिंग है. तो ये सारी चीज़ें जब मिल के बनती हैं, और जो मॉडर्न आर्ट फॉर्म्स हैं जिसमें जो लास्ट 100 years की, इसमें फोटोग्राफी भी आती है. तो ये सारी आर्ट फॉर्म्स जब हम मिला देते हैं तो फिर फिल्म बनती है. तो और इसीलिए इतनी हमने जिन लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी और हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी है, जो हम देखते हैं अपने आसपास, अपनी फेमस पेंटिंग्स जानते हैं, फेमस स्कल्पचर्स जानते हैं, बिल्डिंग्स जानते हैं. तो जितनी भी चीज़ें फेमस हैं पिछले हज़ारों हज़ारों सालों में, जो चीज़ें फेमस रही हैं, जितने भी आर्ट फॉर्म्स फेमस रहे हैं, वो उन सब की अपनी अलग हिस्ट्री है. तो जो फिल्म है, फिल्म की जो फिल्म आर्ट फॉर्म है, वो सिर्फ 100 साल, 120 साल, 130 साल पुराना है. इसकी हिस्ट्री कम है. लेकिन जब आप इसको एनालाइज करने जाते हैं तो हमारी जितनी भी बाकी आर्ट फॉर्म्स हैं, आप उन सब से कुछ ना कुछ ले सकते हैं. तो आई एम श्योर जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं उसमें से ह्यूमैनिटीज़ और साइंस दोनों ही बैकग्राउंड के लोग होंगे.
तो जो एक साइंस स्टूडेंट है वो उसको कैमरा और एडिटिंग के परसेप्शन से वो समझ सकता है फिल्म मेकिंग को। जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो उसको जो हिस्ट्री है, जो स्कल्पचर है, इसके एक परसेप्शन से समझ सकता है। तो फिल्म की अच्छी बात यही है और सब लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि हर इंसान को कुछ ना कुछ उससे मिलता है। इवन वो लोग जैसे जो साइंस या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, लेकिन उनके लिए जो स्टोरी टेलिंग है, कैरेक्टर्स हैं, वो हर हर किसी चीज़ से किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमें पहले तो ये जो फ़िल्म की एक इम्पोर्टेंस है एज़ एज़ एन आर्ट फॉर्म, ये हर स्टूडेंट को या जो भी इंसान फ़िल्म में इंटरेस्ट रखता है, उसको अप्रिशिएट करना चाहता है, उसको पहले ये एक्नॉलेज करना होगा कि हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म है। और जिस तरह का हमारा कल्चर है, हम लोग नॉर्मली मास कंजम्पशन जिस तरह की फ़िल्म्स होती हैं, हम उसको एक आर्ट फ़िल्म की आर्ट फॉर्म की तरह कंसीव करना हमें मुश्किल होता है, पर्सीव करना मुश्किल होता है। लेकिन यही फ़िल्म की ख़ास बात है कि इतनी सारी आर्ट फॉर्म्स का एक अमलगमेशन है और उसके साथ ही ये एक बिज़नेस मीडियम भी है। तो हाँ, जैसे मैंने साइंस और ह्यूमैनिटीज़ की बात करी, उसी तरीके से जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो उसको इसके एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू की तरह देख सकते हैं। उसके लॉजिस्टिक्स कैसे होते हैं, एक इंडस्ट्री ये कैसे एक मॉडर्न इंडस्ट्री कैसे बनी है, जो फ़िल्म इंडस्ट्री है, उसको उस तरीके से देख सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका जिस तरीके की प्राइमरी एजुकेशन रही है, जो सेकेंडरी एजुकेशन रही है, वो अपने-अपने हिसाब से फ़िल्म्स को देख सकते हैं। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम फ़िल्म अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो अगर आपको सपोज़ नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, तो आप कैरेक्टर्स और स्टोरी टेलिंग में आपका फ़ोकस हो सकता है। अगर आप सोशल साइंसेज़ में आपका इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी फ़िल्म उसकी जो उसमें जिस तरह की सोशल वैल्यूज़ दिखाई हैं, किसी तरह की मैसेजिंग है, आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि क्योंकि फ़िल्म एप्रिसिएशन जो है वो अ, जैसे आपके टीचर्स हैं, जिन लोगों ने सारे लोगों ने सब लोग मीडिया रिसर्च सबने करी है, पीएचडीज़ करी हैं। तो ये फ़िल्म एप्रिसिएशन एक तरह की रिसर्च है, जहाँ पर आप फ़िल्म देखते हैं और उसको एनालाइज़ करते हैं। तो ये जो एनालिसिस है, वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ये आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, वो कहाँ पर है, आपको किस तरह का चश्मा लगा के फ़िल्म देखनी है। तो हर इंसान के लिए उसका जो परसेप्शन है, अलग-अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है हर तरह की फ़िल्म का। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरा, जब हम फ़िल्म एप्रिसिएशन की बात करते हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि फ़िल्म एप्रिसिएशन से उसको क्या समझ में आता है? ओके, प्रिंस सर ये कह रहा है कि एक हायर पोटेंशियल के लिए किसी भी फिल्म को किस तरीके से देखा जा सकता है। दिस इज हिज डेफिनेशन ऑफ फिल्म एप्रिसिएशन। ओके। सो हायर पोटेंशियल लाइक इसका आत्मन मतलब क्या हाय, है? हाँ मैं अभी खुद ये सोच रही हूँ, आत्मन हायर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ एनी वीडियो प्रोडक्शन, कोई सर आर्टिस्ट किस आई सेड तरीके कि से। एक आर्ट फॉर्म को उसके हाईएस्ट पोटेंशियल पे उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना कि लाइक व्हाट द डायरेक्टर हैज टू राइट, व्हाट द राइटर सेज, उसको उसके हाईएस्ट पोटेंशियल पे समझना इन फॉर्म ऑफ आर्ट। राइट। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन इसके साथ एक जो बेसिक चीज़ है, वो भी समझने की ज़रूरत है कि फ़िल्म एप्रिसिएशन में और यूजुअली जब हम आज के टाइम पर फ़िल्म रिव्यूज़ देखते हैं, तो उसमें किस तरह का डिफ़रेंस है। जो क्योंकि बहुत बहुत सिमिलर हमको लगता होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स फ़िल्म एप्रिसिएशन जब शुरू कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि फ़िल्म एप्रिसिएशन ही एक मॉडर्न एक टर्म दे दिया है फ़िल्म रिव्यू के लिए ही। तो इट्स नॉट दैट सिंपल। फ़िल्म रिव्यूज़ जो हैं हम देखते हैं यूट्यूब पर और हर जगह न्यूज़पेपर्स में लगातार जो भी नई एक फ़िल्म रिलीज़ होती है, उसका रिव्यू किया जाता है। तो
जो रिव्यू है और जो अप्रिसिएशन है, इसका फ़र्क समझना भी ज़रूरी है कि हर इंसान जो रिव्यू कर रहा है वो फ़िल्म अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। जैसे फ़िल्म अप्रिसिएशन वर्ड में ही अप्रिसिएशन है, तो इसका ये मतलब नहीं है लेकिन कि हम उसमें हमें अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो हम बोल नहीं सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम उन फ़िल्म्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो ऑलरेडी पब्लिक स्फीयर में अपनी जगह बना चुकी हैं। जो भी करंट चीज़ें आ रही हैं, जो जो रिलीज़ हो रहा है, उसका हम रिव्यू करते हैं। लेकिन कोई भी फ़िल्म जो 10 साल, 20 साल के बाद भी रेलेवेंट रहती है ऑडियंस के लिए, आपके कल्चर के लिए, वो फ़िल्म्स हम अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारी ऐसी फ़िल्म्स हैं जो लाइक 99% ऑफ द फ़िल्म्स मास कंज़म्पशन के लिए होती हैं एंड दे लूज़ देयर वैल्यू आफ्टर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। उनकी शेल्फ लाइफ़ नहीं होती। तो जो भी जिनकी भी शेल्फ लाइफ़ है, हम उसी को अप्रिशिएट करते हैं। अगर 20 साल बाद भी कोई फ़िल्म रेलेवेंट है, तो फिर हम उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि अच्छा, इसने अगर अभी तक लोगों के मन में इसने जगह बना रखी है, तो तब यहाँ पर उस हायर पोटेंशियल की बात आती है कि ऐसा क्या किया है इस फ़िल्म ने, जो अभी भी रेलेवेंट है ये। उसके बाद हम उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से कि ये क्यों आज भी रेलेवेंट है। तो पहले तो ये कि फ़िल्म एप्रिसिएशन इसीलिए हम जब एज़ सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, तो वो अपने आप ही हिस्ट्री ऑफ सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा की तरफ चला जाता है। बिकॉज़ जो भी ज़्यादातर फ़िल्म्स हैं, हम ऐसे ही देखने वाले हैं और आपको अगर फ़िल्म में इंटरेस्ट है जिसका भी और फ़िल्म एप्रिसिएशन करना चाहता है, तो वो अपने आप ही आप जब करने निकलेंगे तो आप देखेंगे कि हम 20s, 30s, 40s हर एरा की फ़िल्म देख रहे हैं, हर एरिया की फ़िल्म देख रहे हैं। मतलब ईरान में कैसी फ़िल्म बनती है और जापान में कैसी बनती है, यूरोपियन सिनेमा का क्या मतलब है। तो एज़ अ सब्जेक्ट इट्स वेरी वाइड और उसमें जितनी भी फ़िल्में आज तक हुई हैं, वो सब उनका कुछ ना कुछ एक पार्ट है, उनकी एक इम्पोर्टेंस है। तो फ़िल्म एप्रिसिएशन को ऐसे ही समझा जाता है। अ, हमने डेफ़िनिशन की बात कर ली, ये समझ लिया कि क्यों ज़रूरी है फ़िल्म एप्रिसिएशन। लेकिन आज का हम जो सेशन करेंगे ये थोड़ा डिफरेंट होगा। आई थिंक टीचर्स को भी कुछ अलग लगेगा बिकॉज़ आई हैव रियलाइज़्ड हम लेटली मैंने जितनी भी बार ये सेशन कंडक्ट किया है, हर इंसान का फ़िल्म में उस तरह का इंटरेस्ट अब तक बना नहीं होता है। तो आई हैव ट्राइड नॉट टू इंक्लूड टू मैनी फॉरेन फ़िल्म्स लाइक हार्डली देयर इज़ अ फॉरेन फ़िल्म देयर और दूसरी चीज़ ये कि मैंने कोशिश करी है जितनी भी करंट फ़िल्म्स हैं लाइक पिछले 5 साल की, 10 साल की फ़िल्म्स हैं और हिंदी फ़िल्म्स हैं, जो होपफुली सारे ही लोगों ने देखी होंगी। तो हम लोग जो हमारी प्रैक्टिस है, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। तो हम अपनी जो प्रैक्टिस है, हम वो ये नई फ़िल्म्स के साथ करेंगे, ये समझते हुए कि ये फ़िल्म ज़रूरी नहीं है कि 20 साल के बाद भी इतनी रेलेवेंट रहें, कुछ रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी। तो ये हम सिर्फ़ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। और इसके बाद आपको समझ में आए कि एक फ़िल्म को एप्रिशिएट कैसे किया जाता है, तो फिर जो पुरानी फ़िल्म्स हैं, जो ग्रेट फ़िल्म्स हैं, उसके बाद आप सेम तरीके से वो प्रैक्टिकल आप उन फ़िल्म्स के साथ कर सकते हैं। तो अ माधव सर? Yes, sir. हाँ, तो हम अपना Yeah, ऑर्डर वाइज़ चलेंगे, जो मैंने आपको लिंक्स दिए हैं। sure, sir, sure. So the first one will be the culture one, Slumdog Millionaire, right? या Okay. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? ओके। तो आई होप एवरीवन हैज़ सीन स्लमडॉग मिलियनेयर। अच्छा, मुझे स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ स्टूडियो वाले दिख रहे हैं, तो थोड़ा-सा एक्टिविटी होगी तो अच्छा रहेगा। Students who have joined the online session, आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। And students sitting in the studio, at least you can raise your hands or show us कि thumbs up ही show कर दो कि yes you have seen the movie.
ओके, ग्रेट, ठीक है, एवरीवन, ऑलमोस्ट एवरीवन हैज सीन इट। तो ओके, अगेन फिल्म अप्रिसिएशन इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग। यूजुअली व्हाट वी डू कि हम एक फिल्म देखते हैं, जब हमारी क्लास भी होती थी, जब एफटीआई में क्लास होती थी, तो हम पहले एक फ़िल्म देखते थे और उसके बाद फिर जितने हम स्टूडेंट्स होते थे, हम आपस में डिस्कस करते थे कि हमने क्या देखा, और नेक्स्ट डे हमारी जब टीचर से बात होती थी, तो तब हम लोग डिस्कस करते थे। तो बिकॉज इट्स अ 2 आवर सेशन और हम लोग यहाँ पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आए हैं कि फिल्म अप्रिसिएशन क्या होता है और कैसे करते हैं। तो आई वुड प्रेफर, बिकॉज कि प्रैक्टिकल चीज़ है, तो जब तक हम बात नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। मतलब मैं एक तरफ से बोलता जाऊंगा, आप सुन लेंगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा कि क्या बात हुई। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, इट्स ऑल ऑब्जर्वेशन। हम एक फिल्म देख रहे हैं और कुछ भी ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बारे में, कोई एक शॉट, कोई एक ड्रेस, कुछ लाइट, एनीथिंग एट ऑल। तो किसी को कुछ भी बोलना है, क्योंकि ये फिल्म हमने देखी हुई है, ये ट्रेलर सिर्फ इसलिए थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए कि क्या देखा है इस Sir, फिल्म। ये फिल्म अगर याद है किसी को तो हाँ, कुछ yes, I बताइए would जी। like to start, sir. हाँ, Uh, Irrespective of that the film has got all the credits and all the awards that we have already seen in the past. One thing that I really look forward in this particular film is the character of Anil Kapoor. हम्म, How when he's in front of the camera, when he's hosting the show, what he's like and what he is behind the camera. So that really fascinates me. The level of the opposites basically. So that really creates a lot of curiosity how these kind of characters actually help us, help a movie to move forward. राइट। तो डेफिनेटली जो कैरेक्टर्स हैं, सॉरी, सो जितने भी जो कैरेक्टर्स जितनी भी ग्रेट फिल्म्स हैं, जितनी भी ग्रेट स्टोरीज हैं, वो कैरेक्टर ड्रिवन ही होती हैं। आपको एक छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं जो हमको लंबे टाइम तक याद रहते हैं। इवन जो स्लम डॉग मिलियनेयर में अनिल कपूर का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो थ्रू आउट द मूवी हम उनको देख रहे हैं। लेकिन इरफान खान है, फिल्म स्टार्ट्स विद हिम एंड एंड्स विद हिम, लाइक ही हैज गॉट आई थिंक 2 or 3 सीन्स ओवरऑल, बट ही मेक्स एन इम्पैक्ट। तो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टोरी टेलिंग को बदल देते हैं। डेफिनेटली ये एक चीज़ है जो याद रह जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो अ, थोड़ा सा और सोचें हम, अगर ये इस तरह की फिल्म क्यों वेस्ट में इतना चली, उसमें उसको उनको क्या स्पेशल लगा इस फिल्म के बारे में। क्योंकि हिंदी फिल्म्स लगातार बहुत सारी बनती हैं और बाहर देखी जाती हैं, लेकिन इस तरह का क्रेज़ कभी नहीं हुआ। लाइक ऑस्कर तक इसीलिए पहुंची और जीता क्योंकि सबने देखी, सबको पसंद आई। तो किसी को लगता है कि ये क्यों हुआ ऐसा? व्हाट्स स्पेशल अबाउट स्लमडॉग मिलियनेयर? एंड एवरी आंसर इज द राइट आंसर, तो आप कोई भी बोल सकता है। So for me, I think it's the whole setup, जो basically पूरा मुंबई का जो setup दिखाया गया है, that can be one of the aspect. And then we have one student who's raising the hand from the studio. तो मैं कह रहा था कि जैसे एकदम लो लेवल से स्टार्ट हुई है कैरेक्टर डेवलपमेंट, एकदम स्लम एरिया से स्टार्ट हुआ है, कैसे जमाल फिर एक ऑटोग्राफ के लिए कहा वॉशरूम के नीचे से निकलते हुए जाता है, उसके डेवलप करते हुए दिखाया है। देन फिर वो मुंबई की वो क्या कहते हैं स्मगलर्स के बीच में फंस जाता है, वहां से कैसे निकल के आता है, ये सब इतना ज्यादा डेवलप करा गया है। उसके बाद फिर वो कैसे ताज में पहुंच जाता है, वहां से वो इंग्लिश इतने प्रॉपरली बोल के फिर कहाँ से कहाँ, मतलब उसके शिफ्ट इतना ज्यादा इंक्रीमेंटल दिखाया गया है कि डेवलप कैसे हुआ है एकदम ही कहीं जिसका ना कोई नाम ना कुछ, ना कोई मिडिल क्लास का, एकदम लो क्लास में बंदा कैसे वो एक शो पे आ जाता है और शो जीत भी जाता है इतने ज्यादा अमाउंट के साथ। शायद से इसलिए लोगों को वेस्ट में इतना ज्यादा प्रेफर करा है इस मूवी को। ठीक है, दैट्स ऑब्वियसली इट्स राइट। जितनी जो भी इस तरह की स्टोरीज हैं फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, ये हमेशा इंस्पायर करती है। जो आपका अंडरडॉग है, जब वो जीतता है तो हर इंसान उससे कनेक्ट करता है।
तो ये लेकिन ये स्टोरी लेवल की बात है, और इससे एक फिल्म अच्छी बनती है, ये सच है, आप कनेक्ट करते हो। लेकिन इस तरह की और भी फिल्म्स हैं जहाँ पर आप कैरेक्टर से कनेक्ट करेंगे और कैरेक्टर जीतेगा तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन वेस्ट में ये फिल्म जो लोगों को पसंद आई या अच्छी लगी या समझ में आई, वो जैसा माधव सर ने बोला कि उसका जो सेटअप है वो इस तरह का इंडिया आपने कभी नहीं देखा है, इस तरह का मुंबई बहुत कम देखा गया है। तो जिस तरह की फिल्म्स यूजुअली बनाई जाती हैं, जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म्स होती हैं, उसमें आप ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं। या आप अगर स्लम्स देखते भी हैं तो बहुत ही वो बहुत बहुत मॉडर्न तरीके से दिखाई जाती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं वो स्लम्स। तो जो जितनी रॉ फॉर्म में इसको दिखाया गया, जितना रियलिज्म था, तो जो वेस्टर्न सोसाइटी है उनको थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, जो जब वो गरीब लोग देखते हैं इंडिया में। लेकिन स्टिल आप ये तो हमें तारीफ करनी चाहिए कि इट टुक लाइक ब्रिटिश फिल्म डायरेक्टर जो एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसने यहाँ पे शूट किया। वो कहानी मुझे लगता है कि एक इंडियन फिल्म मेकर बनाता तो उसका देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूजुअल हैं, हम लोग नोटिस भी नहीं करते अपने कल्चर के बारे में, क्योंकि वो हमारी लाइफ का पार्ट है। मतलब हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं और बाहर निकलते हैं, ऑटो ड्राइवर को कैसे रोकते हैं या बसेस में कैसे ट्रेवल करते हैं, वो हमारे लिए इतना मुंडेन हो चुका है कि हमें उसमें कुछ स्पेशल नहीं दिखाई देता। तो एज अ डायरेक्टर जो डैनी बॉयल ने किया है, हमें उसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि और मे बी उनके लिए थोड़ा सा आसान भी होगा क्योंकि इट्स अ डिफरेंट कल्चर। तो आपको हर चीज़ नई लगती है। जितने लोग स्लम्स में रहते हैं और जो अभी बात भी करी कि वो ऑटोग्राफ लेने के लिए वो ही जम्प्स इनटू द शिट और उसके बाद निकलता है। तो टू इमेजिन समथिंग लाइक दैट, आपको कुछ स्पेशल आपको वो दिखना पड़ेगा, आपके अंदर वो ऑब्जेक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसमें जैसे ये एक फिल्म है, ये इंडियन कल्चर को या मुंबई की जो लाइफ है, मुंबई एक बड़ा पोर्शन था, उसके अलावा वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं इंडिया के और पार्ट्स में भी। तो जो कल्चर है उसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, सो दैट इज वन वे जहाँ पर आप जिस तरीके से आप एक फिल्म को अप्रिशिएट कर सकते हैं। लाइक आप चाहें तो एक सेम फिल्म को हम लोग एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि एडिटिंग किस तरह की है, कैमरा किस तरीके का यूज़ किया गया है, म्यूज़िक किस तरीके का यूज़ किया गया है, और जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, वो कैसे ऐड कर रहे हैं चीज़ों में, और उसी तरीके से जो सोशल सेटअप है वो क्या ऐड कर रहा है। इसी से एक सिमिलर फिल्म आई थी, अगर आप लोग फिल्म देखते हैं तो पिछले 2-3 साल पहले की फिल्म है, इसी तरह की एक सिमिलर फिल्म है जो वो भी ऑस्कर के रेस में थी। तो बता सकता है उसका नाम? सिमिलर काइंड ऑफ लुक। ओके, दैट्स फाइन। तो सो दैट्स व्हाट हैपेंस कि आपको जब आप वही फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसमें आप 3-4 अलग अलग चीज़ें हैं, तो उसमें से कल्चर जो है वो एक है। यहाँ पर हम लोग स्लम डॉग की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने देखी है, लेकिन अदरवाइज जब आप फिल्म देखेंगे, अगर आप कोई यूरोपियन फिल्म देख रहे हैं, अगर आप कोई ऑस्ट्रेलियन या ईरानियन फिल्म देख रहे हैं, तो आप जब उसमें 40 साल पुरानी एक फिल्म देखते हैं तो आपको उनके कल्चर के बारे में बेटर समझ में आता है। जैसे हम एक टाइम पे बोलते थे कि आज भी बोलते हैं कि अगर कोई बुक्स पढ़ता है तो उसको दुनिया ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स के थ्रू ही वो दुनिया ट्रैवल कर सकता है। तो इसी तरह की सिमिलर चीज़ हम फिल्म के बारे में भी कह सकते हैं, विच इज़ मोर विजुअल। तो आप जब एक ईरान की फिल्म देखते हैं या आप एक यूरोप की फिल्म देखते हैं तो आपको उनके कल्चर के बारे में, वो किस तरह से कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, किस तरह के घरों में रहते हैं, आपको बेटर समझ में आता है। तो ये एक एग्जाम्पल था स्लम डॉग मिलियनेयर का, जहाँ पर हम मुंबई जो दिल्ली वाले जितने लोग हैं, अगर उन्होंने मुंबई नहीं देखा है और अगर आप एक ये जवानी है दीवानी जैसी एक फिल्म देखते हैं जिसमें आप मुंबई देखते हैं और आप एक स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म देखते हैं, तो आपको वो कल्चरल डिफरेंस दिखेगा। और जब आप फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ये आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको एक मिक्स
समझना पड़ेगा उसका कि अच्छा एक लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास का इंसान जो है वो किस तरीके से रहता है, उसकी हार्डशिप्स क्या हैं, और एक अपर क्लास जो हम देखते हैं कि रणबीर कपूर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उनका घर कैसा दिख रहा है, तो वो एक आपको फ़र्क समझना पड़ेगा जब आप कोई भी फिल्म देख रहे हैं। अच्छा माधव सर, हम सेकंड उसका नेक्स्ट लिंक प्ले करेंगे। प्रिंस Oh, भाई, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी मैं स्टूडियो से बोल रहा हूँ अभी। जी जी। क्योंकि मेरी पसंदीदा फिल्मों में नहीं है ये, जी इसलिए मैं हो सकता है कि मेरी बात एज ए डायरेक्टर, एज ए फिल्म मेकर आपको अलग से लगे। जहां तक अभी बात की गई थी इस फिल्म की, आपने बोला कि मुंबई का जो स्लम है, कि मिस्टर डैनियल इज ए ब्रिटिश फिल्म मेकर, हम्म। और इंडियन 1988 में फिल्म आई थी सलाम सलाम। बॉम्बे, हम्म। उसमें भी स्लम था, हाँ और उसने भी मुंबई और इंडिया को बहुत अच्छे से डिपेंड किया था, बहुत अच्छे से दिखाया था। करेक्ट। इसके साथ दो भी घाट थी 2011 में। हम्म इसके बाद शूट आउट एट वडाला थी, हम्म। वो भी काफी हद तक स्लम्स के ऊपर थी। एक फिल्म में मैं भूल रहा हूँ, नसरुद्दीन शाह थे उसमें और ओमपुरी थे, वो टुवर्ड्स द फैक्ट्रीज ऑफ मुंबई, जिसमें वो पूरा स्लम का वो दिखाया गया था। अब क्योंकि कथा की बात करें? मैं फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, मैं वो फिल्म का नाम। बट मेरा यहाँ पे कहना है कि डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। स्लम हम्म डॉग को ये मैं देखिए, मैं फिल्म क्रिटिक की तरह से अभी बोल रहा हूँ, अभी आप हम्म। इसको अदर वे में बिल्कुल भी ना लें कि जी ये जानबूझ के इसको अप किया गया था ऑस्कर की तरफ। ये हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि आप एक इंडिया को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के जो कॉल सेंटर्स हैं वो एक चाय वाला चला रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिजनेस था कॉल सेंटर्स का वो इंडिया में था, सबसे ज्यादा जो मार्केट थी वो इंडिया की थी, जो आईटी सेक्टर था इंडिया का था। बाकी जगह हमारा जो मैन पावर थी अच्छी क्वांटिटी में और क्वांटिटी और क्वालिटी में वो कॉल सेंटर्स में चल रहा था, उनको जानबूझ के दिखाया गया। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमको ऑस्कर में जा रहे हैं हम लोग, और ये दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ एक फिल्म एक्टर के लिए इतनी ज्यादा टेम्पटेशन है कि वो शिट में डूब के भी उसको देखने जा रहा है, कि हमारे पास और कोई काम नहीं है। बिकॉज ये पूरी जो इट्स टोटली कॉल्ड इज ए प्रोपेगेंडा फिल्म। बिकॉज मैं अभी भी शुरू में, आई एम ऑल्सो ए फिल्म मेकर, बट मेरे हिसाब से ये था। और अगर मुंबई की खूबसूरती दिखानी है तो हमारे जो फिल्म मेकर्स थे, इंडियन फिल्म मेकर्स ने बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया इंडिया के स्लम को, उनके दर्द को, और कि स्लम में रहना कितना मुश्किल है। इवन गली बॉय में अगर आप देखें कि एक चौल के अंदर किस तरीके से कितनी कितनी फैमिली रही, और आप प्रिंस खुद मुंबई में रहते हैं, आपको पता है कि चौल सिस्टम वहां पे क्या है। तो मेरा ये कहना कि कंपैरिजन अगर हम करते हैं ब्रिटिश फिल्म मेकर्स के साथ, उनकी अपनी एक मानसिकता रही होगी, पर मुझे लगता है कि इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स ने फिल्म को ज्यादा बेहतर तरीके से मुंबई को दिखाया, क्योंकि वो ज्यादा समझ सकते थे। ये मेरे हिसाब से एक प्रोपेगेंडा फिल्म रही थी। बाकी ये एज ए फिल्म क्रिटिक मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेकिन देखिए, तो जब हम फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, जैसे आपने सलाम बॉम्बे का नाम लिया, तो मैं लेने वाला था, लेकिन मैंने आपको जैसा आज स्टार्टिंग में ही बोला, मैंने वो फिल्म्स लेने की कोशिश करी है जो सभी लोगों ने देखी हो, ताकि हमारा एक बेटर डिस्कशन हो पाए। तो और इसीलिए बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। रही बात प्रोपेगेंडा फिल्म की, तो प्रोपेगेंडा फिल्म तो अब कुछ कोई भी हो सकती है। हमारा जो पहला पर्पस है यहाँ पर, वो फिल्म एज एन आर्ट फॉर्म हम समझ रहे हैं। और ये कह रही है एक इंडियन नॉवेल के ऊपर बेस्ड है, Q&A। तो वो एक इंडियन नॉवेल के ऊपर उनको लगा, डैनी बॉयल को, कि बनानी चाहिए, तो उन्होंने बनाई। और अच्छा, इसके अलावा जब हम फिल्म की पढ़ाई करते हैं तो हमें बेटर समझ में आता है कि कौन सा डायरेक्टर किस तरह की सोच रखता है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जहाँ डैनी बॉयल ने इस तरह का कुछ कुछ शूट किया है। वो उन्होंने एक फिल्म बनाई है, ट्रेन स्पॉटिंग।
आई डोंट नो कितने बच्चों ने या टीचर्स ने देखी होगी. सो वो काफ़ी डार्क फिल्म है, ड्रग अब्यूज़ के ऊपर फिल्म है, और वो जो ब्रिटिश सोसाइटी में जो लोअर स्ट्रेटा है, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और उनकी लाइफ किस तरह की होती है, उन्होंने उसी तरह की फिल्म दिखाई है, और वो भी रियलिटी के बहुत करीब है. तो आपको एज डायरेक्टर मालूम चल जाता है कि जब ये जो भी वो बना रहा है कि इज ही ऑनेस्ट और नॉट. तो अगर आप डैनी बॉयल की और फिल्म देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो इसी तरह की फिल्म वो बनाते हैं. बल्कि ऐसा ज़रूर है कि जो स्लम डॉग मिलियनेयर है, दैट इज़ अ लिटिल फिल्मी इन सम वे. वो इस तरह थोड़ा सा वो उन्होंने जिस तरह की उनकी स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है, उन्होंने हल्का उसमें म्यूजिक लिया है, थोड़ा सा गाना शूट किया, तो उन्होंने वो भी कोशिश करी है उस तरह का रखने की, जबकि उनको ज़रूरत नहीं थी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और रही बात ऑस्कर की, तो दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम. अवार्ड्स जो मिलते हैं वो उनके जो रीजंस होते हैं और जिस तरह का आप वहाँ पर पीआर करते हैं, वो बिल्कुल ही अलग तरीके से वर्क करता है. लेकिन उसका फ़ायदा ये ज़रूर है कि यहाँ पर दैट सेल्स, एंड वंस इट सेल्स तो फिर सारे लोग देखते हैं. तो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि जो भी फिल्म जितने ज़्यादा लोगों ने देखी हो, तो हम उसको अप्रिशिएट कर पाएँ कि ये क्यों देखी जा रही है ऑन द फेस ऑफ इट. तो अच्छा, हम अभी एक नेक्स्ट क्लिप प्ले करते हैं प्लीज. अपनी मांग सुहागन हो. ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई बताएगा मुझे? कोई स्टूडेंट? टीचर्स ही बोल रहे हैं क्योंकि पॉपुलर फिल्म्स हैं, ये तो सबने देखी है. स्टूडियो स्टूडेंट्स, एनीवन? अच्छा, पहले ये बताओ कि ये मूवी देखी है? सबने देखी है. थम्स अप. सबने देखी है, ठीक है. तो फिर तो पता होगा कि क्या हो रहा है बीच यहाँ में पर. 2 लोग बैठे हैं जिन्होंने स्लम डॉग भी नहीं देखी है और कभी खुशी कभी गम भी नहीं देखी है. हाँ, सर ये एक मूवी का गाना शूट मतलब गाना था, कभी खुशी कभी गम बोलो चूड़ियां, जिसमें सारे जो एक्टर्स हैं वो डांस वगैरह करते हैं. करवा चौथ को कोई फंक्शन होता है दैट टाइम. या तो अब तो इस जो हमने जो पोर्शन देखा उसमें लाइक क्यों देख रहे हैं हम, ये फिल्म में क्यों दिखाया जा रहा है, पर्पस क्या है? सर इसमें मतलब ये साफ पता लग रहा है कि इस फिल्म का ऑब्जेक्टिव क्या है. इतने सारे खुश लोग एक साथ मैंने कभी नहीं देखे, और ऐसा करवा चौथ मैंने कभी नहीं सुना. तो ये साफ पता लग रहा है कि ये जो फिल्म है इसका पर्पस एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे फ्रेम्स, जहाँ पे जो पूरा सेट है, जो पूरा घर है, जहाँ जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो इतने सुंदर और इतने अच्छे दिखने वाले हैं. तो ये एक तरीके से फेरी वर्ल्ड में या फेरी टेल टाइप की जो एक क्रिएशन है फिल्म्स के माध्यम से, ताकि जो लोग हैं वो अपनी एग्जिस्टिंग रियलिटी से हटके थोड़ा सा कुछ अलग इमेजिन कर सकें और थोड़े समय के लिए थोड़ा अच्छा महसूस कर सकें. मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का उद्देश्य इस पूरे गाने से साफ झलकता है. ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं प्रमोद सर. लेकिन देखिए, अभी हम एक स्टेप हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से. तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑब्वियस हैं, जो जितनी सारी चीज़ें बोली ये हम लोग हर फिल्म में यही देखते हैं. लेकिन अगर हमें ये समझने की कोशिश करें हम कि इस तरह की बहुत सारी फिल्में हैं, जहाँ हम करवा चौथ देखते हैं, जहाँ हम शादियाँ देखते हैं, और अभी जैसे रक्षाबंधन आ रही है, तो ये सारी फिल्म्स जो हैं वो आपको आपका कल्चर ही दिखा रहे हैं, कल्चरल रिप्रेजेंटेशन है. जब वेस्ट में देखा जाता है, अब मैं वेस्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि जैसे हम अगर यूरोप की फिल्म हम देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा वो लोग कैसे बिहेव करते हैं. तो ये जो फिल्म्स हैं, यही फिल्म्स हमें वेस्ट में रिप्रेजेंट करती हैं कि यहाँ पर इस तरह का फंक्शन होता है जहाँ पर इतने सारे लोग कम्युनिटी की तरह मिलते हैं, डांस करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं. तो आप इसको मिस रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं एक तरह से, या फिर ये कह सकते हैं कि आप जो फिल्म मेकर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू यही है, मतलब वो कल्चर को या वो करवा चौथ को इसी तरीके से देखता है. स्टूडेंट्स, स्टूडियो से कोई स्टूडेंट पूछना Yes. चाह रहा है.
afternoon, sir. Sir, it is audible? Yeah. तो सर एक जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू नोट करा वो इस फिल्म में ये है कि आपने सही कहा कि कल्चर रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि यहाँ पे किस तरह हर एक त्योहार को महत्व दिया जाता है। एंड सर दूसरा ये भी कि इसमें अलग अलग हमें शॉर्ट्स देखने के लिए मिले, एक ही गाने में कितने सारे शॉर्ट्स, और दूसरा एक इमोशंस कितना अच्छा दिखाया है कि दो भाई साथ नाच रहे हैं लेकिन एक दूसरे को पता नहीं। और दूसरा जब लास्ट में वो गले मिलते हो देन जया जी का जब वो क्लोजअप दिखाया जाता है, वो रनिंग शॉट उनका आते हुआ, तो वो इमोशंस भी कितने अच्छे से लेके वो गैदर करे हैं कि राइट रिप्रेजेंटेशन कल्चर रिप्रेजेंटेशन के साथ इमोशन रिप्रेजेंटेशन भी इतना अच्छा रखा है। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। नहीं बहुत बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये। तो करेक्ट, ये हमें जब भी हम फिल्म देख रहे हैं तो ये दिस इज ऑल प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिकल की तरह कर रहे हैं हम लोग। ये आपको फिल्म अप्रिसिएशन में कभी कभी खुशी कभी गम नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन आपको देखना ये है कि देखते कैसे हैं। यहाँ पर जैसे एक बात प्रमोद सर ने बोली, उसी तरीके से ये भी है कि आप इमोशंस को कैसे दिखा रहे हैं, आप म्यूजिक को किस तरीके से प्ले कर रहे हैं, म्यूजिक का यूज क्या है यहाँ पर, आप एक स्टोरी टेलिंग में आप क्या क्या चीजें हैं जो ऐड कर सकते हैं। हम एक कम्युनिटी, जैसे प्रमोद सर ने बोला कि इतने सारे लोग, तो जब भी हम कोई इवेंट दिखाते हैं हम उसको उसकी जो इम्पैक्ट है उसको बढ़ाने के लिए, लोग जितने ज्यादा लोग होंगे उतना उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। कि इट्स अ फेस्टिवल जहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आप उसको फेस्टिविटी आप दिखाना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे लोग हैं जो देयर इज डांस, देयर इज म्यूजिक, सबने अच्छे कपड़े पहने हैं। और जब आप स्टोरी की बात करते हैं तो ये कि दो भाई साथ में डांस कर रहे हैं, आप फैमिली वैल्यूज दिखा रहे हैं, या जो फैमिली के एक इमोशंस हैं वो आप दिखाना चाहते हैं स्टोरी में। किसी को याद है केथरी जी का टैगलाइन क्या था? तो जब ट्रेलर आता था उसके लास्ट में इट वाज रिटन कि इट इज ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स। तो दे पिच द फिल्म लाइक दैट कि आप फैमिली वैल्यूज पर ही फिल्म पिच की गई है। अब जो मेन पर्पस है, स्टोरी इज फैमिली बेस्ड स्टोरी। उसके बाद आप उसमें ये जितनी चीजें हैं, जो म्यूजिक है और जो जो लोग खुश हैं और बाकी सारी चीजें हैं, ये हार्ड सेल है। तो आपको आपके लिए सबसे पहले जो एक स्टोरी है, जो कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले वो अट्रैक्ट करने पड़ेंगे ऑडियंस के लिए, और उसके बाद फिर आप बाकी सारी चीजें करते हैं। तो कोई भी चीज़ वर्क क्यों कर रही है वो आपकी स्टोरी और कैरेक्टर पर ही डिपेंड करता है। और वो स्टोरी, जब आप फैमिली की बात करते हैं तो इसीलिए आप बहुत सारे फेस्टिवल्स दिखाते हैं, जो ट्रेडिशंस हैं आप ट्रेडिशंस दिखा रहे हैं, शादी दिखाते हैं, बर्थडेज हैं, सारा कुछ आप देख रहे हैं इसमें। जैसे हम आपके हैं कौन जैसी फिल्म है, जहाँ पर आप छोटे छोटे जितने भी शादी के इवेंट्स होते हैं आप सारे बड़े बहुत डिटेल में देखते हैं। तो आपका पर्पस क्या है वो हमें वो समझना पड़ेगा जब भी लाइक एक डायरेक्टर का पर्पस क्या है। तो जब हम फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमें एक डायरेक्टर की तरह सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये डायरेक्टर ये बात क्यों बोलना चाहता है और ऐसे क्यों बोलना चाहता है। उसके कुछ रीजंस आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकते हैं कि अच्छा नहीं ये इसको शायद सिंपल बोल सकता था, लेकिन आपको सेल भी करना है तो आपने इसीलिए आप इंस्पिरेशनल लगना चाहिए थोड़ा सा, तो आप उसको म्यूजिक हाई करते हो, बहुत सारी चीज़ों का क्वोशंट हाई करते हो। Sir, other than that, from the other than director's perspective, what I have also noticed is that films like these, even Hum Aapke Hai Kaun, when came in '94, or Kabhi Khushi Kabhi Gum, they create a lot of new trends in terms of fashion, in terms of when a film like K3G releases, and उस दौरान जो शादियां हैं, जो functions हैं, जो आम लोगों के घरों में होते हैं, तो वहां पे भी एक इंस्पिरेशन आ जाती है लोगों में कि हम वैसे कपड़े पहनेंगे। तो वो भी एक तरह का एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हम अगर चांदनी चौक जाते हैं तो मनीष मल्होत्रा के जो सेलिब्रिटीज कपड़े पहनते हैं वैसा कॉपी हमें मिल जाता है। सो इट्स लाइक दैट। तो ये भी एक तरह का एक ट्रेंड है जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ऑडियंस और इंडियन मार्केट में डेवलप होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट दैट जो मैं कभी कभी नोटिस करता हूँ। नहीं डेफिनेटली ये सच है। ये हम आपके हैं कौन और कभी खुशी कभी गम का जो एग्जांपल है बिल्कुल सही है। तो ये लाइक इसी तरह की चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप फिल्म अप्रिशिएट करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि, और ये दोनों तरीके से वर्क करता है, कि कौन सी टाइम की फिल्म्स किस तरह की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है और फिल्म्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर। तो
और ये क्यों हो रहा है? लाइक अच्छा, कोई जैसे जो बहुत सारे नए जैसे शादियों की बात करते हैं या फेस्टिवल्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे नई चीज़ें हैं जो कल्चर में जुड़ गई हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों है? कोई बता सकता है मुझे? जो अभी माधव सर ने बोला, इसमें कोई ऐड कर सकता है? कोई स्टूडेंट ऐड करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Yes, anyone कुछ from the कुछ studio? कुछ भी हो सकता है। आप रैंडम चीज़, आपको जो लग रहा है कि शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, मुझे लगता है तो कि जब डायरेक्टर मुझे हाँ, लगता है नहीं, कि जब डायरेक्टर कोई लार्जर देन लाइफ स्क्रीन पर एस्पेक्ट दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। जैसे राइट। माधव सर ने बोला, एक तो कल्चरल एस्पेक्ट है, दूसरा हुँ, फैशन एस्पेक्ट है, हुँ, तीसरी जो इमोशनल एस्पेक्ट में हम चीजें देखते हैं, कभी खुशी कभी गम की अगर बात करें, इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स। तो उसकी जो स्टार्टिंग ही थी मूवी से, वो पेरेंट्स से ही थी, ना कि वो उस तरीके के करेक्टराइजेशन से थी जहां पर हम काजोल या शाहरुख खान को देख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम भागवान जैसी मूवी की बात करें, जहां पर अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने लीड रोल में पेरेंट्स का ही रोल किया है, तो बहुत सारे ऐसे इमोशनल और सेंटिमेंटल अटैचमेंट्स आ गए, स्पेशली उस एज ग्रुप में जहां पर उनकी या तो इनसिक्योरिटीज डेवलप हो गई, या फिर उनमें एक आप कह सकते हैं कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू देयर चिल्ड्रन डेवलप हो गया थ्रू सिनेमैटिक कंटेंट। जहां पर सिनेमा एक मूविंग पिक्चर में स्टोरी टेल बता रहा है, पर हमारे कैरेक्टर्स हमारी जिंदगी के ही हैं, जहां पर 60 साल की उम्र का एक इंसान अपनी उम्र के साथ ही उस कैरेक्टर को रिलेट कर रहा है। सो दिस इज लाइक, मैं इस चीज को ऐसे देख रही हूँ। बिल्कुल आप ठीक बोल रही हैं मैम, लेकिन एक चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पर, कि जो जैसे ट्रेंड की बात है ना, तो लाइक डायरेक्टर्स कौन हैं, प्रोड्यूसर्स कौन हैं, फिल्म फ्रेटर्निटी में किस तरीके के लोग हैं। तो जब हम बात करते हैं कि सब्जेक्टिविटी की, लाइक कि जब करण जौहर एक शादी का फंक्शन देखता है तो वो कैसे देखता है, और वो एक डायरेक्टर है जिसका इम्पैक्ट है लोगों पर, उसकी फिल्म्स का लोगों पर असर पड़ता है। तो ऐसे में वो जो चीज़ दिखाएगा वही ट्रेंड करेगी। और इसी तरीके से जितने हमारे ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स हैं, वो और जो जो कमर्शियल सिनेमा बनाते हैं, पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल में जो कमर्शियल सिनेमा के जो डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स रहे हैं, तो उनका जो परसेप्शन है, उनकी जो सब्जेक्टिविटी है, उनका जो शादियों को दिखाने का तरीका है, वो उसका असर पूरे इंडिया पर है, इर्रिस्पेक्टिव कि किस स्टेट में किस तरह की शादी होती है। जबकि हर स्टेट में अलग तरीके से शादियां होती हैं, सबका कल्चर अलग है। लेकिन ये जो डायरेक्टर्स हैं, ये जिस तरह की शादियां दिखा रहे हैं, उसकी वजह से वो बाकी शादियां भी बदल गई। जो उनके जो फंक्शंस के नाम होते हैं वो बदल गए हैं, कुछ फंक्शंस ऐड हो गए हैं। तो इसके इसके आगे कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? एक ट्रेंड और ऐड करना चाहूंगी। हाँ। आफ्टर द मूवी बैंड बाजा बारात, हम सब एक पार्टी को हायर करते हैं कि हमारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज किया जाए। काइंड ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग इज वन ऑफ द अनदर कल्चरल एस्पेक्ट इन आवर कल्चर, जहां पर हम डेस्टिनेशंस ढूंढते हैं, ना कि हम अपने घर को शादी वाले घर में कन्वर्ट करते हैं। जी। यस, सुकृति मैम, यू वांट टू से समथिंग? Yes, I think that this is also has to do with the kind of economic and political scenario in the society as to what kind of narratives are coming up lately. So, if we are focusing on, say, for example, the movie like Pardes, what kind of a setup was that? That, in the 90s, we see that there is suddenly a lot of influence of the West. So to counter that, we come up with the ideas of हमारा भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति को promote करना कि हम better हैं दूसरों से, that we, the supremacy of the East over the West, trying to portray that, क्योंकि एकदम से वो जो LPG की पॉलिसी के बाद चेंजेस आए कि हम वेस्ट की तरफ बहुत इंक्लाइन हो रहे थे, तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक चेंज भी था उस टाइम का।
ये एक social change भी था जिसको I think which affected the kind of narrative that we had in the movies. Similarly, I think the same concept can be applied to all these examples that are being discussed right now. राइट, तो हम जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, हम यहाँ पर कल्चर की ही बातें कर रहे हैं. यस, फ्रॉम द स्टूडियो. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. स्पीक लिटिल लाउडर प्लीज. Good afternoon, sir. यस, गुड आफ्टरनून. तो सर आपने बोला कि करण जौहर जिस तरीके से अपनी मूवीज में शादियों को दिखाते हैं, तो उनसे शायद हम लोग ना ये चीज देखते हैं कि हम अपनी शादियों में ना हल्दी मेहंदी ये सब बहुत इंक्लूड, हर शादी में हल्दी का फंक्शन और मेहंदी का फंक्शन अलग से नहीं होता, संगीत Correct. अलग से नहीं होते. मूवीज को देख के हम भी वो चीज करने लगे, तो ये चीज एक मुझे लगी. ओके, नहीं, राइट. सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब जहाँ पर हम बात कर रहे थे डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू की, डायरेक्टर की सब्जेक्टिविटी की, तो जो काफ़ी सारे जो हमारे डायरेक्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं पिछले कुछ टाइम में, दे बिलोंग टू पंजाबी कल्चर. तो जब वो एक फिल्म बनाते हैं तो उन्होंने जिस तरह की शादियाँ देखी हैं वो उसी को डेवलप करते हैं, और उसके बाद जब वो फिल्म बनती है, वो फिल्म पहुंचती हर इंसान तक है, लाइक पूरे इंडिया में पहुंच रही है, और हम उस फिल्म से इंस्पायर हो रहे हैं, ये देख के नहीं कि वो पंजाबी कल्चर है. नॉर्मली उनके लिए वो एक इंडियन शादी है जो इस तरीके से की जाती है. तो ये जो एक तरह का कल्चरल एसिमिलेशन है, जहाँ पर एक कल्चर की हम कुछ एलिमेंट्स जो है वो दूसरे कल्चर में जा रहे हैं. मतलब आज के टाइम पे हम मराठी या बंगाली शादी में भी जाएंगे तो हमें उसमें पंजाबी कल्चर्स मिल जाते हैं कि अच्छा, जो इवेंट जैसे अभी हल्दी मेहंदी की बात हो रही थी, इसी तरीके से और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अब सब लोग करते हैं. लाइक यूपी में अलग तरह की, यूपी में चूड़ियाँ पहनी जाती हैं शादी में, और दिल्ली में और पंजाब में चूड़ा पहना जाता है. लेकिन आप जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, और अब सब लोग चूड़ा पहनना चाहते हैं, काफ़ी लोग चूड़ा पहनना चाहते हैं. तो ये जो एक कल्चरल डिफरेंस है, और डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है जब एक डायरेक्टर अपनी एक सब्जेक्टिविटी लेकर आता है एक फिल्म. तो जो देखने वाली बात है, जो एनालाइज करने वाली बात है, वो यही है कि अच्छा, हम छोटी छोटी चीज़ें एनालाइज करें, हम ऑब्जर्व करें कि ये क्यों हो रहा है, और ये डायरेक्टर ऐसी चीज़ क्यों बोल रहा है. आप ये हर जगह होता है. ये जैसे अभी विशाल सर ने भी बोला, तो उनको एज फिल्म क्रिटिक उनको ये लगा कि एक फिल्म जो है वो फिल्म प्रोपेगेंडा की तरह हमें इंडिया को एक तरीके से दिखाई जा रही है वेस्ट में सेल करने के लिए. तो लेकिन वो एक ऑब्जर्वेशन है, और क्योंकि सबका जो परसेप्शन है वो अलग अलग तरीके का होगा किसी भी फिल्म को लेके, किसी भी डायरेक्टर को लेके. तो आप हमेशा उसकी जितना डिटेल में आप जा सकते हैं आपको जाना चाहिए. ये हमने अभी केतरी जी की बात करें, लेकिन आप किसी भी तरीके से कोई भी फिल्म आप उठा सकते हैं कि चाहिए डायरेक्टर अगर ये स्टोरी बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, और वो ऐसा क्या लेकर आ रहा है जो किसी और दूसरे डायरेक्टर जो नहीं लेकर आया. हम एक काम करते हैं, हम इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ जी. ये कि ट्रेडिशनल म्यूजिक का भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, जो पहले नहीं था. ट्रेडिशनल म्यूजिक इन द सेंस या मतलब राजस्थान का हो फोक, या गुजरात का फोक हो, या यूपी का फोक हो, वो कोशिश की जाती है कि एक सॉन्ग कम से कम फिल्म में रख लिया जाए अगर आप ट्रेडिशनल थिंग्स को पोर्ट्रे कर रहे हैं. तो ये भी एक चीज है जो ऐड हुई है. अगर मैरिजेस की हम बात जहां तक कर रहे हैं उसमें ट्रेडिशनल सॉन्ग एक जरूर रखा जाता है, फोक सॉन्ग. हाँ, तो दिस इज अ रीसेंट ट्रेंड. तो जब आप फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसका एक पर्पस ये भी है कि आप ट्रेंड को समझें, और ये ट्रेंड अगर कुछ साल, एक दो फिल्म से ट्रेंड नहीं बनता है. ट्रेंड लंबे टाइम तक कोई सिमिलर तरह की फिल्म्स होती हैं या उन फिल्म्स में कुछ एक सिमिलर एलिमेंट यूज किया जाता है, तो आपको वो ट्रेंड समझ में आता है. तो जब आप एक फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, ये इस डेकेड में या इन 5 सालों में ये कुछ एक अलग है, चीज़ है जो यूज़ की गई है. तो जैसा मैम ने बोला, ये पिछले कुछ टाइम का ट्रेंड है जहाँ पर जिस भी एरिया की स्टोरी बोली जाती है वहाँ पर, और एक और ट्रेंड है, कोई बताना चाहेगा, ये जो मैम ने बोला जो म्यूजिक यूज़ किया जाता है, इससे एक जुड़ा हुआ एक और ट्रेंड है जो हम पिछले 5 साल या 10 साल की फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में देखते हैं, कमर्शियल फिल्म्स में. कोई स्टूडेंट बताएगा?
किस तरह की फिल्म्स हम ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बनाई जा रही हैं? Yes, Anjali Kulal. ये जो ट्रेडिशनल म्यूजिक से रिलेटेड। सर मुझे आप जो कहना चाहते हो मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं, बट मैंने जो महसूस करा है कि 2013-14 के बाद फिल्मों में अक्सर रैपिंग ज़्यादा देखने के लिए मिल गई। पहले सॉन्ग्स लिखे जाते थे, लेकिन अब रैप ज़्यादा आ गए मार्केट में। पहले रैप जो सॉन्ग आते थे वो प्राइवेट इन द सेंस अलग एल्बम होती थी, बट अब वो फिल्मों में ज़्यादा लिए गए हैं रेदर देन सॉन्ग्स। ठीक है, राइट, दैट्स का काम कम हो चुका है, रैप ज़्यादा आ चुका है मार्केट में। दैट्स ट्रू। लाइक जब जैसे नहीं तो ये जैसे ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात थी, उसी तरीके से ये भी सच है कि रैप जो है पिछले 10 साल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है। तो दैट इज़ अगेन आपका जो सोसाइटी है वो बदल रही है, और सोसाइटी में हमारे रैप आर्टिस्ट इस टाइम पर काफ़ी सारे आ गए हैं जो पहले नहीं थे, पहले थे लिमिटेड नंबर में थे और अब बहुत पॉपुलर हो गए। तो इसीलिए हम फिल्म्स में देख रहे हैं, और मोस्टली फिल्म्स में जिस तरह के सॉन्ग्स यूज़ हो रहे हैं वो ऑलरेडी सिंगल्स में आ चुके हैं। अब उनको फिल्म में रिपीटिशन होता है, जो भी पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं ऑलरेडी किसी सिंगर के, हम वही यूज करते हैं दोबारा। तो दैट वी आर ट्राइंग टू कैश इन ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ रैप म्यूजिक एंड these famous songs. It's true. That is one trend. Okay. So shall we go with the next video? Yeah, so no, there's one more thing जो मैं मैम की बात में भी कनेक्ट करना चाह रहा था कि जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसी तरीके से आप ये भी नोटिस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में जो स्टोरीज हैं वो छोटे शहर की स्टोरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस आ गया है। जब हम आयुष्मान की फिल्म्स हैं, राजकुमार राव की फिल्म्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स हैं जो लेटली आई हैं, पोस्ट तनुवत्स मनु बोलना चाहिए उसके बाद। शुभ मंगल सावधान तो आई थिंक दिल्ली की स्टोरी है, बट बरेली की बर्फी, बधाई दो और सारी ऐसी हैं। हाँ, तो अभी ये इस तरह की बहुत सारी फिल्म्स हैं जहाँ पर वो छोटे शहर की स्टोरीज दिखाना चाहते हैं डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, और हर शहर का एक अलग कल्चर होता है, तो वो फोकस करते हैं कि जो लैंग्वेज में हल्का सा अलग उनका एक्सेंट का चेंज है, जो उस शहर की कुछ स्पेशल चीज़ें हैं वो दिखाएं। तो दैट इज अनदर काइंड ऑफ ट्रेंड। सर हम इवन मूवीज के साथ जो चीजों के बारे में बात नहीं कर पाते हैं, मूवीज के थ्रू अब ऐसा हो गया कि हम उसके बारे में बहुत ओपनली बात भी कर पा रहे हैं बिकॉज राइट। सो दैट इज अनदर ट्रेंड जहाँ पर हम जैसे शुभ मंगल सावधान है, या अभी शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, बधाई दो, इस तरह की फिल्म्स लेटली काफ़ी सारी आने लगी हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम विकी डोनर जो बहुत सारी ऐसी जो टेबू टॉपिक्स होते थे एक टाइम पर, उनके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो दैट इज़ अनदर ट्रेंड जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सोसाइटी है वो थोड़ा सा हमारी ओपन हो गई है, इन चीज़ों पर बात होती है, और जो फिल्म मेकर्स हैं उनको भी समझ में आ गया है कि अगर हम सीरियसली सेम चीज़ के बारे में बोलेंगे तो शायद उतना लोग रिसीव नहीं करेंगे, तो दे ट्राई टू मेक इट लाइट। जैसे किसी ने फायर देखी है यहाँ पर? तो स्टूडेंट्स को पता है फायर के बारे में? दीपक मेहता की फिल्म है, नंता दास शबाना आजमी। ओके, तो जैसे फायर जैसी फिल्म है वो जिस टाइम पर आई थी तो इट वाज नॉट रिसीव्ड बाय द ऑडियंस वेरी वेरी लाइक इन अ गुड वे। तो लेकिन आज के टाइम पर हम सेम तरह के टॉपिक्स और इश्यूज रेज कर सकते हैं, इट हैज बिकम ईजियर। तो आपको लगातार ट्रेंड समझने पड़ेंगे कि अच्छा अभी इस वक्त किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। सो दिस इज द इजीएस्ट थिंग टू डू आज के टाइम पर कि आप जो जिस तरह की आप फिल्म देख रहे हैं आपको ट्रेंड समझ में आते हैं। माधव सर, हम ट्रेंड्स में कुछ 2-3 चीजें प्ले करेंगे क्या? ओके सर। Anyone has seen this trailer? स्टूडेंट्स में देखा है किसी ने ट्रेलर ये वाला? नहीं? Yes sir. अच्छा, ओके। तो ये ट्रेलर अभी फिल्म टू बी रिलीज फिल्म है मणिरत्नम की। मणिरत्नम का नाम सुना है सब लोगों ने? ओके, मुझे सिर्फ स्टूडियो वाले लोग दिख रहे हैं, तो ये आप लोग थोड़ा सा हाथ हिलाएंगे तो अच्छा रहेगा।
टीचर्स ने तो देखी है, ठीक है। हैंड रेज भी कर सकते हो भाई, हैंड रेज करो, रेज योर हैंड जिसने मणि रत्नम का नाम सुना है। ओके, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन कोई बोल सकता है कि अभी ये हमने एक ट्रेलर देखा, इससे क्या पता चलता है अभी कुछ और ट्रेंड चल रहा है क्या जो हम जिसके बारे में बात कर सकते हैं? शुभम पांडे बताएंगे। शुभम। Yes, sir. So, Mani Ratnam, obviously, one of the prominent film directors from South. One of the movies that I like the most is Guru, and followed by Dil Se. And the recent one that I watched was Oke Janu, which was again from his South film. And his style of direction actually, creates a lot of curiosity amongst the characters also. And the characters develop throughout the film. And like, for example, in Guru, how the character of Abhishek Bachchan was when he was in his young 20s, and shifting forward when the film was about to end when he came in his late 50s and 60s. Everything is, एक बहुत स्मूथनेस बनी रहती है कैरेक्टर्स में, वो चेंज भी होते हैं, डेवलप भी होते हैं, कुछ ऐसे एकदम से नहीं लगता कि एकदम से बदल गया, लेकिन वो धीरे धीरे जो बदलाव आता है वो चीज काफी मतलब मेरे को बहुत फैसिनेट करती है अबाउट मणि रत्नम्स डायरेक्शन स्टाइल। लेकिन ये ट्रेलर देख के आपको ऐसा लगा कि इस तरह का कुछ हमने देखा हुआ है पहले, या हम रिजेम्बलेंस इज फ्रॉम बाहुबली सर। ओके। एंड बेसिकली जो माइथोलॉजिकल फिल्म्स होंगी वो उनसे थोड़ा बहुत, बट डेफिनेटली कुछ रिफ्रेशिंग फैक्टर्स भी हैं। So do we think कि there's a trend going on जो इस तरह की बाहुबली और अभी हमने जैसे जो पोनियन सेल्वन के ट्रेलर देखा, इस तरह की और फिल्म कोई बता सकता है जो भी recent? अच्छा, so we have something in chat also, right? Yep. कीर्ति माथुर is saying true. तो बायोपिक बहुत सारी बन रही हैं, 83 है करेक्ट, गंगूबाई, शेरशाह, सरदार उधम, रॉकेटरी, करेक्ट। तो इट्स ट्रू कि हम बहुत सारी बायोपिक्स बना रहे हैं, दैट इज अनदर ट्रेंड। और एक ये जहाँ पर हम इसकी बात कर रहे थे, इस तरह की हिस्टोरिक फिल्म्स, हिस्टोरिक विद लॉट्स ऑफ ग्रैंडर और वीएफएक्स जो है वो इस तरह का एक बाहुबली ने ट्रेंड शुरू किया है, जहाँ पर हम बहुत सारी फिल्म्स देख रहे हैं जो जैसे अभी सम्राट पृथ्वीराज हो गई, एंड देन उससे पहले पानीपत आई थी, मैग्नम ओपस फिल्म्स बेसिकली। हाँ सारी हम तो ये एक तरह का ट्रेंड है जो हम बहुत ही बड़ी फिल्म देख रहे हैं और हिस्टोरिक फिल्म देख रहे हैं। तो ऐसा ही होता है यूजुअली, जहाँ पर एक फिल्म जो अच्छी बनती है और उसके बाद उसी की तरह की बहुत सारी फिल्म्स बनाई जाती हैं। जब हम जैसे छोटे शहर की फिल्म की बात कर रहे थे तो वो दैट स्टार्टेड विद तनु एट्स मनु, और उसके बाद हम बैक टू बैक छोटे शहर की फिल्म्स देख रहे हैं। और जैसे विकी डोनर है, विकी डोनर के बाद हम बहुत सारे जो टैबू सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फिल्म्स देख रहे हैं। तो ये जो है ये ट्रेंड सेटर फिल्म्स हैं, और ये शुरू करती हैं और उसके बाद बहुत सारी फिल्म्स तब तक आती रहती हैं जब तक जो जॉनर है वो मतलब ओवर ना हो जाए, जो लोग हैं वो बोर ना हो जाए देखते देखते, तब तक हम देखते रहते हैं इसको। तो दैट इज ट्रेंड। जो आप फिल्म अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक फिल्म अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आप ट्रेंड्स भी समझते हैं कि अच्छा फिल्म मेकिंग में किस तरह के कल्चर्स चल रहे हैं, किस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। जैसे कोई मुझे बता सकता है कि जब हम अगर इंडियन फिल्म्स की बात करते हैं 70s की या 80s की, तो कोई स्पेसिफिक चीज़ थी जो वो डेकेड में बहुत ज़्यादा हम उस तरह की फिल्म्स देखते हैं, उस तरह के सब्जेक्ट्स देखते हैं? एक्शन, कोई भी, कुछ भी। हाँ, एक्शन फिर रिवेंज, राइट। So there was like एंग्री यंग मैन जो है वो अमिताभ बच्चन जो उसी टाइम पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं 70s में, अर्ली 80s तक। तो हम वो उसी तरह का ट्रेंड देखते हैं जहाँ पर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है दैट इज ऑलवेज एंग्री, ही वांट्स टू टेक रिवेंज, एंड वो सोशली ऑप्रेस्ड है किसी ना किसी तरीके से।
और रिलीजियस फिल्म्स भी काफी चली हैं एंड फैमिली रिलेशंस से रिलेटेड भी रिलीजियस फिल्म का भी था 70s में एंड रिलेशन से रिलेटेड फैमिली बैकग्राउंड एंड फैमिली मदर फादर ब्रदर्स लाइक दिस। तो लेकिन जैसे हम जब फैमिली फिल्म्स की बात करते हैं या रिलीजियस फिल्म्स की बात करते हैं, सो दैट इज पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। तो उस तरह की फिल्म्स हमें थ्रू आउट देखने को मिल जाएंगी, लाइक हमेशा हर साल में, हर डेकेड में हमको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जब हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक डेकेड दूसरे डेकेड से अलग क्यों है, तो उस डेकेड में कुछ स्पेशल होगा। तो दैट्स हाउ 70s इज डिफरेंट। सर जैसे मेरे को लगता है कि 70s 80s और 90s के टाइम पे जो विलेन या जिसको हम एंटागनिस्ट कहते हैं वो कोई दूसरा आदमी होता था और प्रोटैगनिस्ट कोई दूसरा होता था। लेकिन 2000 के बाद मेरे को ऐसा लगा कि फिल्में थोड़ी सी इस तरह की आने लगी जहां प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट खुद ही एक आदमी है, वो अपने अंदर की लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो वेकअप सिड में अपने करियर और एम्बिशन को लेके हो, चाहे दिल चाहता है मैं जिस तरह की अलग तरह की, ये फिल्में मुझे याद आ रही हैं लेकिन कई सारी फिल्में मैंने ऐसे देखी। तो वहां पे हमारे को ऐसा लगा कि सोसाइटी भी बहुत बदली। जहां पहले कलेक्टिव टाइप की सोसाइटी दिखाई जाती थी 70s 80s के दौर में, या हम अमर अकबर एंथनी में देखें तो कितना पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दिखाया जाता था। 2000 के बाद थोड़ी सी सेल्फ सेंट्रिक, थोड़ी सी अपने मन की करने वाली टाइप की कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने थोड़ा सा वो किया। तो मुझे ये डिफरेंस 90s से पहले की और 90s के बाद की फिल्मों में देखने को लगा। ट्रू। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है प्रमोद सर का कि जो हमें उससे पहले तक ओके यस आप पहले बोलिए फिर मैं बोलती हूँ। तो ये जो है 70s 80s 90s तक एक हमें एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत थी एक विलन के लिए, और उसी जो सोशल जो सोसाइटी थी वही हम रिफ्लेक्ट हो रही थी फिल्म्स के अंदर। और 2000 के बाद जो जिस तरह से सोसाइटी चेंज हुई है वो ये इस तरह की फिल्म में दिखाई देती है। जैसे वेकअप सिड की बात करी, जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोई फेस नहीं, फेसलेस प्रॉब्लम्स इश्यूज हैं। तो ये तो इसी तरह के जो ऑब्जर्वेशंस हैं एज व्हेन वी आर अप्रिशिएटिंग फिल्म, तो हमें इसी तरह के ऑब्जर्वेशन है जिन पे ध्यान देना है कि ये तो हम अभी ट्रेंड्स की बात करें कि किस तरह के ट्रेंड्स, किस तरह के फिल्म मेकर्स और फिल्म मेकिंग अलग अलग टाइम पर हुई है और हो रही है। यस मैम। मैं वही आपके डिकेड टू डिकेड की कंपैरेटिव स्टडीज पर अगर बोला जाए, जैसे हम 70s 60s में अगर देखें, पहले उस टाइम पर हम सैक्रिफाइस को ज्यादा देखते थे। अकॉर्डिंग टू मे बी वो हो सकता है कि प्रोटैगनिस्ट की तरफ से हो, जैसे एक संगम मूवी की हम एग्जांपल ले सकते हैं, राज कपूर, अपना वहीद सॉरी वैजयंती माला एंड राजेंद्र कुमार। देन उसके बाद जब 70s और 80s के बीच में आए तब कहीं ना कहीं एक्शन हीरोज, और देन उसके बाद जब अमोल पालेकर को हमने देखा, अ वेरी कॉमन बॉय, जैसे हम कह सकते हैं अ मैन नेक्स्ट डोर तरीके से, जहां पर हमने कॉमन मैन के स्ट्रगल्स को भी देखा थ्रू फिल्म मेकर्स, क्योंकि उन फिल्म मेकर्स का पर्सपेक्टिव वही था कि एक बजाज चेतक पर एक लड़का निकल रहा है अपने फादर को प्रॉमिस करते हुए कि आज नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए ये स्ट्रगल भी है कि नौकरी भी ढूंढनी है, शादी भी करनी है और बहन की शादी भी करनी है, अपनी शादी भी करनी है और बहन की शादी भी करनी है। देन अगर हम यही 80s में आए तो 80s में सबसे मेरे दिमाग में सबसे अच्छा एग्जांपल आता है लम्हे मूवी का, श्रीदेवी एंड अनिल कपूर। वो एंटायरली एक सोशल स्ट्रक्चर में मूवी अलग थी, जहां पर एक ही अपना प्रोटैगनिस्ट है जो अपनी फीलिंग्स के साथ ही फाइट कर रहा है। पहले उसके लिए उसका जो इमोशनल सेटबैक था उसकी मदर के लिए था, पर अचानक से उसकी बेटी को उसके लिए जब वही फीलिंग्स डेवलप हुई तो वो उन फीलिंग्स के साथ फाइट करता रहा कि मैं अगर अपनी ही पहली जो मेरी पसंद थी उसकी बेटी के साथ ही शादी करूंगा या उसको एक्सेप्ट करूंगा तो हाउ सोसाइटी विल रिएक्ट, काइंड ऑफ एक क्वेश्चन मार्क था वो सोसाइटी की तरफ। और 90s में हम सब जानते हैं शाहरुख खान और यश राज बैनर्स की मूवीज, जहां पर स्विट्जरलैंड हम एज अ डेस्टिनेशन एक आउटलुक के तरीके से कि हमने सीनिक ब्यूटी को एज अ आर्ट फॉर्म किस तरीके से यूज करना है, एंटायरली 90s में हमने डिफरेंट एस्पेक्ट देखा, जो कि फिर धीरे धीरे 2000 में चेंज हुआ। 3 इडियट्स, वेकअप सिड, ये सब चीजों ने हमें दिखाया। सो दिस इज लाइक माय ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू डिकेड्स
और उससे पहले गुरुदत्त और वहीदा रहमान को हम देखते थे 14वीं का चांद में तो वो अलग चीज था। राइट, तो हम बिल्कुल करेक्ट है फ्रॉम द स्टूडियो। सर मैम ने काफ़ी कुछ कह दिया तो मेरा कहने का मतलब नहीं बनता, पर एक दो चीज़ मैंने जो नोट करी वो इस पीरियड में कि 60s में सर पहले मूवीज होती थी जरा नॉवेल्स पे बेस्ड होती थी, उपन्यास पे होती थी, तो इक्की दुक्की कॉमेडी आती थी। लेकिन 70s में सर एक एरा चला लाइट हार्टेड कॉमेडी का, और वो अमोल पालेकर जी लाए, जैसे गोलमाल, छोटी सी बात, देन उसके बाद फिर धर्मेंद्र जी भी आए ऋषिकेश मुखर्जी के साथ चुपके चुपके। तो एक लाइट हार्ट कॉमेडी का एरा चला 70s में, और 80s में फिर वो दोबारा कम देखने के लिए मिला। लेकिन 90s में जब डेविड धवन और गोविंदा जी की जोड़ी आई तो वो एरा हमने दोबारा देखा कि किस तरह 90s में गोविंदा किस कदर छाए हुए थे कॉमेडी मूवी पे। तो सर ये एरा मैंने नोटिस करे हैं कि 70s और 90s में किस तरह देखे गए हैं कॉमेडीज की। राइट, तो ये भी बिल्कुल ये करेक्ट है। ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो भी फिल्म्स रेगुलर देखते हैं जिनको पसंद है वही इस तरह का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि और ये बहुत आसान हो जाता है जब आप एक बार सोचना शुरू करते हैं। आप अगर आप अपनी एक लिस्ट निकालेंगे और आपने फिल्म देखी हैं, आपको जैसे ही समझ में आता है कि अच्छा ये 10 फिल्में मैंने इस एरा की देखी हैं और इनमें क्या कॉमन है, तो वो हमें अलग अलग तरीके के ट्रेंड देखने को मिलते हैं और हम उन ट्रेंड्स को अच्छा ये ट्रेंड्स हैं और हम इनको एनालाइज कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, मतलब क्या व्हाट इज चेंजिंग फ्रॉम डेकेड टू डेकेड। वो हमारी खुद की एक्सरसाइज है ये समझने के लिए, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो हम इस चीज को 3-4 सेंटेंस में खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब आप एनालाइज करना शुरू करते हैं तो आपको इसमें इसी सेम बात जो आपने ऑब्जर्व किया उसके इन डेप्थ में जाना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। लाइक सडनली डायरेक्टर्स ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या ऑडियंस को हर बार पसंद आ रहा है तो क्यों पसंद आ रहा है, क्या सिर्फ मनी मेकिंग ही प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फिल्म्स में हैं जो जैसे अमोल पालेकर की फिल्म्स हैं, वो छोटी फिल्म्स हैं, वो मास कंजम्पशन वाली फिल्म्स नहीं है। तो व्हाट इज चेंजिंग एज अ सोसाइटी एंड फॉर डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि डायरेक्टर्स की थॉट में क्या चेंज आ रहा है। जैसे जो प्रमोद सर ने बात बोली 2000s के बाद की, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि कमर्शियल फिल्म्स नहीं बन रही, लेकिन ये फिल्म मेकर्स की ही चॉइस है कि ओके वी वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली, जहाँ पर हमें विलन नहीं चाहिए, हम बिना विलन के हम कुछ कहानी कहना चाहते हैं। तो ये इस तरह का जो ट्रेंड है ये क्यों हो रहा है, ये भी ये समझना ज्यादा जरूरी है यहाँ पर। जी, मैंने ऑब्जर्व किया है कि 70s और 80s में ना एक्ट्रेसेस पे बहुत ज्यादा फोकस डाला जाता था, मतलब लोग उन्हें देखने के लिए जाते थे। जैसे पुरानी जो हमारी हीरोइन है उन पे बहुत फोकस डालते थे। लेकिन फिर 90s में ना वो थोड़ा कम हो गया, मतलब हीरो पे बहुत ज्यादा फोकस। और अब जैसे हम अभी जो मूवीज आती हैं उन पे दोबारा से जो है एक एक्टर जो है वो पूरी मूवी होल्ड कर सकती है, मतलब उन्हें बस। ओके, तो इट्स ट्रू, जो अभी हम आज के टाइम पे जो हम फिल्म्स देखते हैं फिर से बहुत ज़्यादा जो एक्टर सेंट्रिक हो गई हैं, जो फोकस है वो सारा प्रोटैगनिस्ट पर है, जो हीरोइज्म है वो हीरोइज्म बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसका हम जो रीज़न है वो डेफिनेटली जो भी पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स हैं, जो भी जैसे बाहुबली की बात हुई, तो बाहुबली एक बड़ा रीज़न है ये चेंज करने का जो अभी प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है। हाँ सर जैसे अभी मेंशन किया कि पहले हीरोज और हीरोइंस पे ज्यादा फोकस करा जाता था, बट अब साइड कैरेक्टर्स का भी ज्यादा मेन आ गया है। जैसे कॉमेडियंस का साउथ साइड में देखे तो लास्ट 15 to 20 ईयर्स में कॉमेडियंस का बहुत मेन रोल रहता है कि उसके बिना मूवीज इनकम्प्लीट लगती है साउथ साइड की। एंड अब साइड कैरेक्टर्स जो होते हैं कि भाई का कैरेक्टर हो गया, दोस्त का कैरेक्टर हो गया, तो कितना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब हीरोज के साथ, इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करी जाती है साइड कैरेक्टर्स की भी अब। राइट, तो लाइक दिस इज वन ऑब्जर्वेशन। एज होमवर्क क्या होना चाहिए कि आप ये सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जहाँ तक बात करी ये इतनी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आपको और पढ़ना पड़ेगा या और देखना पड़ेगा एक तरीके से। जब 50s और 60s में हिंदी फिल्म्स में भी जो इवन 70s तक जो कॉमेडियंस हैं उनका एक अलग सेपरेट ट्रैक होता था। एक 2 ढाई घंटे 3 घंटे की फिल्म में
एटलीस्ट 40-45 मिनट सिर्फ उन कैरेक्टर्स के लिए होता था, उनकी कहानी के लिए होता था, जिसका मेन स्टोरी से कोई मतलब नहीं था। तो दे हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर 70s और 80s में जो आपके कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, उनका रोल छोटा होता गया और वो सिर्फ एक सीन या 2 सीन के लिए आने लगे। और अब ये जिस तरह की बात है, आज के टाइम पर हम देखते हैं कि कॉमेडियंस अलग से होते ही नहीं है। जो हीरोज हैं या जो साइड कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, वही कुछ ना कुछ उनके मैनरिज्म्स होते हैं, कुछ क्वर्क्स होते हैं, जो उनको कुछ सीन्स में वो कॉमेडी हो जाती है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो ड्रामा हो जाता है। तो ये इसी तरीके से डेवलप हुई है, लाइक फिल्म मेकिंग, और जो अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं। तो जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है उसने अलग तरीके से डेवलप किया है, जो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री है उसने अलग तरीके से डेवलप किया है। तो आपकी ये जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसके साथ ही थोड़ी सी और फिल्म्स देखने की ज़रूरत है, ताकि आप ये बेटर समझ पाएँ कि ये क्यों हो रहा है और क्या फ़र्क है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, और ये फ़र्क क्यों है ऑब्वियसली। अच्छा, तो हमने ट्रेंड्स की बात कर ली, मुझे नहीं लगता है कि हम ट्रेंड्स और कुछ अभी करेंगे। हम माधव सर, ये जी जो सर। डायरेक्टर स्टाइल है उसमें फर्स्ट लिंक प्ले कर दीजिए प्लीज। ओके सर, जस्ट 1 सेकंड। तो अभी तक हमने कल्चर और ट्रेंड्स की बात करी जब हम फिल्म अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। नाउ वी लुक फॉर समथिंग डिफरेंट। ओके, सब लोगों ने देखी होंगी बाहुबली तो दोनों। हाँ, स्टूडियो में। यस सर। चलो, ये सब लोगों ने देखी है, बीच में जो 2 लोग बैठे हैं उन्होंने भी देखी है। गुड, ठीक है। अच्छा, तो अब तक हमने अलग अलग तरह की हम बात कर रहे थे जब हम फिल्म अप्रिसिएशन की बात कर रहे थे। यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्टर की बात करेंगे कि डायरेक्टर व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू एंड हाउ इज ही ट्राइंग टू डू व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। ऑडियंस के बीच में सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है। मैंने देखी थोड़ा सा नहीं मूवी, तेज। बट अब आ रही है सर आवाज? हाँ, हेलो हेलो। डायरेक्टर ना ऑडियंस के बीच में सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है। मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन जितना मुझे समझ आया वो ये कि बाहुबली के फर्स्ट पार्ट में वो कटप्पा बाहुबली को मार देता है, और उसके बाद सेकंड पार्ट में पता चलता है कि क्यों मारा है। और ऐसे सीक्वेंस ना मूवी के बहुत कम बनते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, बट ओके, वील ट्राई टू बी मोर स्पेसिफिक कि अच्छा, ये क्योंकि हम सब लोगों ने देखी है, मोस्टली लोगों ने देखी है और स्टोरी हमें पता है, लेकिन जो विजुअली जो हम देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, जो भी विजुअली हम जो शॉट्स देख रहे हैं, जो जिस तरह का पिक्चराइजेशन है उसमें कुछ अलग है। हमने 2 सीक्वेंस देखे, उन दोनों में अगर स्टोरी की बात कर रहे हैं तो पिक्चराइजेशन का क्या फ़र्क है दोनों में, और क्यों है वो? क्या दोनों सेम सीक्वेंस हैं, सिमिलर सीक्वेंस है? एक्चुअली सर, जैसे फर्स्ट पार्ट में बिट्रेयल का दिखाते हैं, किसी को भी अपनी पीठ दिखाना, मतलब आपको फुल ट्रस्ट होना चाहिए उस बंदे पे, एंड उधर से ही आपका शैडो साइड से दिखा रहे हैं कि बाहुबली को पीछे से तलवार आती है कटप्पा साइड से। बट जब सेकंड सीन में वो अपने घोड़े को बुला रहा होता है, तब ऊपर उठा तलवार अपने उससे बचाने के लिए, बट उसी साइड उसके बेटा उठा लेता है बाहुबली का, एंड उससे ही मार देता है। फिर बचाने के टाइम पे जब वो शक्ल देखता है तब उसको लगता है कि ये वही बंदा है जिसने उसको मारा था, बट उसका बेटा होता है। और वो उसका इतना रहता है क्योंकि वो अपने बेटे समान मानता था बाहुबली को, तो इसलिए वो फुल्ली जाता है एंड उसके लिए नीचे रेडी हो जाता है कि उसकी सेवा के लिए। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए सर डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ऑलमोस्ट देयर। और कोई ऐसी चीज़ है जो हमें दोनों सीक्वेंस में अलग लगती है? हाँ, सर दोनों सीक्वेंस सर नाइट के दिखाए हैं, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। बट दोनों सीक्वेंस में एक अपग्रेडेशन देखने के लिए मिलती है, एक विजुअलाइजेशन और अच्छी देखने के लिए मिलती है। पहले पार्ट में जब आप सबने ये सीन देखा था, देन उसके बाद एक एंथुसियाज्म और क्रिएट होता था कि सेकंड पार्ट में क्या होगा, सेकंड पार्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, व्हाट इज द रीजन गोइंग टू बी बिहाइंड इट। तो सर वो जो सेकंड पार्ट का सीक्वेंस दिखाया है सर, उसमें एक अपग्रेडेशन दिखाई है, एक विजुअलाइजेशन को और अच्छे से दिखाया है। ओके। So one more thing is fire and water.
which is also relevant in his latest film RRR also. And the silhouette shots basically. When Bahubali is also gets attacked by a Katappa, and when he's killing the son of his uncle. So in the first part, so silhouette shots का उसमें use किया गया है against the lighting, and which actually creates a lot of good impact amongst the audience. That's one of the things. So directors, studio sir. As Madhav sir said, I wanted to say the same. Like S.S. Rajamouli really emphasizes on the silhouettes and the fire aspect. कि जैसा हमने देखा कि like there was a fire, so naturally we perceive that as a silhouette, क्योंकि the fire is bright. But even in the night, when we saw that when he cuts off his head and he's running, then उसका भी silhouette shot होता है. So like that's the selling point of S.S. Rajamouli. राइट. सो इसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं जिनका रीज़न जो डायरेक्टर ने जो सारी चीज़ें यूज़ करी हैं, वो तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या क्यों किया है. जैसे हम सिल्यूट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सिल्यूट से एक तरह का जो अभी किसी ने बोला जो सस्पेंस एक क्रिएट किया जा रहा है, एक रीज़न ये है. दूसरा जो फायर और वाटर की बात है, तो स्टूडियो से यही बात हो ही रही है फायर एंड वाटर का. फर्स्ट में दिखा रहा है कि उसको रिग्रेट हो रहा है कि उसने उसको मार दिया, बट दूसरी जगह अपना रिग्रेट को एज अ वाटर के तौर में डिसॉल्व करते हुए दिखा रहा है, उसको बुझाते हुए दिखा रहा है कि अब वो फाइनली पश्चाताप कर पाएगा एज अ सेंस में. चलो वेरी गुड, ठीक है. मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो बोले इस तरह का कुछ. तो लाइक इसके भी अलग अलग थोड़े से और डिटेल में हम जाएं, थोड़ा सा अलग कुछ मीनिंग हो सकता है, लेकिन पॉइंट यही है कि जो इमोशन है जो सीन का, जो फायर और वाटर के एलिमेंट्स हैं डायरेक्टर ने उसी तरीके से यूज़ किए हैं. एक जो है वो फर्स्ट फिल्म जो क्लाइमैक्स में जहाँ पर बिट्रेयल दिखा रहे हैं, वहाँ पर हम फायर देखते हैं, और जहाँ पर जो रेजोल्यूशन है एक तरह का उसका जो इमोशन है, वहाँ पर हम वाटर देखते हैं. तो वो दोनों इमोशंस को कन्वे करने के लिए उन्होंने एलिमेंट्स को यूज़ किया है. तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं. एक चीज़ और है जो बाकी लोगों ने मिस करी है. फर्स्ट सीक्वेंस में सिर्फ 2 ही लोग हैं. सेकेंड सीक्वेंस में एक वहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस है. तो जो एक ऑडियंस जो वो स्टोरी में उस टाइम पर करना चाहता है डायरेक्टर, कि जो हीरोइज्म दिखाना है उसका, जो फर्स्ट सीक्वेंस में जो बिट्रेयल है दैट इज़ वेरी पर्सनल, तो इसलिए वहाँ पर और कोई नहीं है. लेकिन जो एक्सेप्टेंस है उस बिट्रेयल का, और जो सारे लोग फॉलो करेंगे अपने लीडर को, ये दिखाने के लिए उन्होंने उसी मोमेंट पे वो सारी ऑडियंस को दिखाया है वेरी कन्वीनियंटली. जितने भी उसको उसके गांव से ढूंढने लोग आए होते हैं वो भी वहीं पर पहुंचते हैं, और सारे ही लोग एक साथ एक टाइम पर वहां पहुंचते हैं जब जो कटप्पा है उसको रियलाइज होता है कि उनका लीडर आ गया है. तो वो यही वो मोमेंट है जहाँ पर हम उसको एक हीरो की तरह देखते हैं, और उसकी मॉम को दिखाते हैं, सारे ही लोग एक साथ हैं वहाँ पर. तो अलग अलग इमोशंस हैं जो एक ही साथ एक सीन में उनको कन्वे करना है. कि आप सिल्यूट यूज कर रहे हैं जिसका पर्पस अलग है, जो पूरी ऑडियंस आती है उसका पर्पस अलग है, और वो जो बारिश है उसका पर्पस अलग है. जो कलर पैलेट हम देखते हैं, एक में बिल्कुल ब्लू है और एक जो है वो बिल्कुल येलो और रेड है. तो जिस तरह के कलर्स यूज किए जा रहे हैं, तो ये सारा कुछ डायरेक्टर जो है बहुत लाइक आप कोई भी अच्छी फिल्म देखेंगे तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितनी चीजें हैं आप हर चीज को उसी तरीके से आप एनालाइज कर पाए. तो तभी किसी डायरेक्टर की जो स्टाइल है उसको वही समझ में आती है. अच्छा माधव सर, आप थर्ड और फोर्थ भी थर्ड प्ले कर दीजिए, थर्ड लिंक सेम सीक्वेंस. ओके ठीक है. तो इसमें और जो हमने पिछले सीक्वेंस देखे, इसमें माधव सर वैसे तो पहले बोल चुके हैं, बट स्टिल और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? यस सर. ओके. तो माधव सर ने ये तो बोला कि इसमें यूज किया गया है. अगर कोई मुझे बता सकता है कि जो फायर और वाटर के एलिमेंट्स हैं आरआरआर में और कहाँ यूज किए गए?
किसी को याद है? बताइए। Audible? Yeah, a little louder, please. Sir, now am I audible? Yeah. सर जब उन दोनों का मतलब इंट्रो दिखाते हैं, जब एक बच्चा वो बोट मतलब वो बोट जल जाती है और एक वो उसे बचाने जाता है और वो नीचे पानी में, तो वो दोनों का मतलब दिखाते हैं कि जब इंट्रो होता है दोनों का जब मिलते हैं, तो जब उन दोनों का तभी दिखाया था फायर और वाटर का एलिमेंट। राइट। तो बिल्कुल करेक्ट। राजामौली सर ने क्या किया है, जो उनका एक डायरेक्टर का सबका स्टाइल होता है, एंड ही मेड हिज कैरेक्टर्स कि उन्होंने सिंबॉलिज्म, जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं इमोशन को वो फायर और वाटर के एलिमेंट्स के थ्रू दिखा रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने कैरेक्टर्स के साथ ही वो एलिमेंट्स एसोसिएट कर दिए, जहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही सिमिलर तरीके के हमारे कैरेक्टर्स हैं जो फाइट करते हैं और एक्शन दोनों ही लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के साथ फायर एसोसिएट किया गया है। जो दोनों की पर्सनैलिटी है, उन्होंने पर्सनैलिटी का पार्ट बनाया है उसको, कि जो एक है वो रिवेंज लेना चाहता है, वो गुस्से वाला आदमी है, ही इज़ अ प्लानर। जो दूसरा है वो एक वो सिर्फ वो रेस्क्यू करना चाहता है। तो जो उनका जो इमोशंस हैं, वो पूरे इमोशंस ही बहुत ड्रास्टिकली अलग है। दूसरा इंसान जो है वो बहुत वो प्लानिंग नहीं कर सकता है, वो मतलब प्लान वो भी कर रहा है, लेकिन हम उसको देखते अलग तरीके से। तो कैरेक्टर्स के साथ ही एसोसिएट किया है। इवन जो फर्स्ट सीक्वेंस है दोनों का जो कैरेक्टर इंट्रो होता है, वो याद है किसी को? बता सकता है कोई? फर्स्ट जब हम रामचरण को देखते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो किस तरह का कलर पैलेट है? सर जब रामचरण का इंट्रोडक्शन होता है तो उसको बहुत ही एंग्री, बहुत विशियस और मोटिवेटेड दिखाते हैं। उसके लिए उसका कलर पैलेट ऑरेंज लाइक फायर रखा जाता है, कि लाइक हम देखते हैं कि वो भीड़ में जाके एक बंदे से कैसे स्ट्रगल करके करेक्ट। उसको और करते हैं। दूसरा एंड एनटीआर का? हाँ, जो एनटीआर है वो थोड़ा काम, रीजनेबल, केयरिंग, एंड देन ये दिखाया है। तो उसके हिसाब से उसका कलर पैलेट ब्लू है, लाइक वाटर, लाइक गो विद द फ्लो टाइप्स। तो लाइक उसका उसका इंट्रो ऐसे दिखाया था कि वो शेर से जो सीक्वेंस थी उसका दिखाया था, कि लाइक वो इतने स्ट्रेसिंग करेक्ट। एनवायरनमेंट्स में भी कैसे काम रहता है। राइट। तो अब ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन डायरेक्टर ने जो भी एलिमेंट्स दिए हैं अपने कैरेक्टर्स को, उन्होंने उसके लिए सेम सिमिलर कलर पैलेट फॉलो किया है। और ये पूरा हम ब्लू ग्रीन देखते हैं, जंगल के अंदर देख रहे हैं, और वो पूरा हम डेजर्ट के अंदर देख रहे हैं, जहाँ पर येलो, ऑरेंज, रेड ये वाले कलर्स जो हैं वो ज़्यादा दिखाई देते हैं। और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप रिपीटेड व्यूइंग पे समझ में आती हैं, या आप अगर बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है तो समझ में आती हैं और याद रहती हैं। जब फर्स्ट सीक्वेंस है रामचरण का, तो हम देखते हैं कि एक ग्लास बॉटल जिसमें वो आग लगा के मॉप फेंकती है, और उसके बाद ही उसको ऑर्डर देते हैं कि उसको पकड़ के लाओ। राइट। जो सेकंड सीक्वेंस है जहां पर हम जूनियर एनटीआर का इंट्रो देखते हैं, तो हम उसको पानी के साथ खड़े हुए देखते हैं। लाइक कलर पैलेट अलग है, लेकिन उसके फर्स्ट शॉट में वाटर इज देयर, पानी है, वो पानी कुछ लगा भी रहा है, वो लगा रहा है, पी रहा है, कुछ ना कुछ इस तरह के एलिमेंट्स थ्रू आउट है। जब दोनों साथ में मिलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक नदी के ऊपर एक ट्रेन में आग लगती है। तो चारों तरफ आग लगती है, और उसके बाद पानी के ऊपर हम आग देखते हैं, और उसके बाद दोनों पानी के अंदर पहली बार हाथ मिलाते हैं। तो देयर इज फायर ऑल अराउंड एंड देयर इज वाटर ऑल अराउंड। तो वो थ्रू आउट जो डायरेक्टर है उसने वो फॉलो किया है। इसके अलावा एक सीक्वेंस और है जहां पर हम इस तरह का जो फायर और वाटर का कन्फ्रंटेशन देखते हैं। कोई मुझे बता सकता है वो कहां पर है इस फिल्म में? यस। ने देखा एंड वाले सीन में ही, जब वो राम जी वो मतलब आग में से निकल कर आते हैं
और जो एनटीआर है वही भाला मतलब पानी में से निकल के एकदम आता है वो, तो वो वाला राइट, सीन। ठीक, ये क्लाइमैक्स है, मैं बात कर रहा हूँ कन्फ्रंटेशन की। कन्फ्रंटेशन कितनी बार होता है? प्रमोद सर, माधव सर बताइए। सर द वन जहाँ पे Junior NTR is actually attacking the castle. Right. That's the other than that, yes, there's one student, sir, who also wants to say yes. एनटीआर जब एंटर करता है कैसल के अंदर, मतलब एंटर करता है मैंशन के अंदर, तब पहले सारे जानवरों को छोड़ के पूरी आग लग जाती है, तब रामचरण का ज्यादातर सीन दिखाते हैं, बट जब फाउंटेन के नियर बाय का सीन आता है तब एनटीआर का दिखाया जाता है सर। राइट, करेक्ट। तो वो जो लड़ाई है जहाँ पर 1-on-1 जब लड़ाई हो रही है, उससे पहले तक सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं कि फाउंटेन में से एक पाइप निकलता है और जूनियर एनटीआर इज ऑपरेटिंग दैट, और रामचरण जो है उसके पास फायर वाला कुछ एक कुछ होता है। तो हम, हाँ, तो वो हम थ्रू आउट हम वैसे ही देख रहे हैं, लाइक आपने जो डायरेक्टर है उसने स्टार्ट टू एंड ये फॉलो किया है कि दोनों के इंट्रो सीन्स में उसने वो एलिमेंट्स रखे हैं। ये उन दोनों की जब दोस्ती होती है तो हमने वो एलिमेंट देखे हैं कि फायर इज ऑन वाटर, साथ में देखते हैं, और जब कन्फ्रंटेशन है तो हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने एलिमेंट्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और लास्ट में हम वो दोनों जब मिल जाते हैं तो तब भी हम उसका जो एलिमेंट है उसका प्रेजेंस देखते हैं। तो ये डायरेक्टर का स्टाइल है जहाँ पर उसने एक सिमिलर तरह की चीज अलग पर्पस के लिए यूज करी है जब हम बाहुबली देख रहे हैं, और यहाँ पर उसने वो जो फायर वाटर के एलिमेंट्स हैं उनको अलग तरीके से यूज किया। तो हर डायरेक्टर का अपना अलग बेसिकली कहने का तरीका ये है कि जब आप फिल्म अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होती हैं, और आप हर चीज़ जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं भी है, आप उसके पॉइंटर बनाते जाइए। आप फिल्म देखें और उसके पॉइंटर बनाएं, और इवेंचुअली आपको रियलाइज़ होगा कि आप उसमें कॉमन चीज़ें जब निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डायरेक्टर क्या सोच रहा था। क्योंकि डायरेक्टर बहुत सारी चीज़ें सोचता है अपने हिसाब से, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो फिल्म में ऐड करता है, लेकिन फर्स्ट व्यूइंग में हमको समझ में नहीं आती, या फिर वो जो ऑडियंस है उसके लिए वो इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। जो एक एक आर्ट फॉर्म का पर्पस जो है कि मैसेज पहुंचाना, मैसेज और इमोशन वो पहुंच गए ऑडियंस तक, लेकिन जब हम फिल्म अप्रिशिएट करते हैं तो हम सिर्फ ऑडियंस नहीं है, हम उस मीडियम को समझना भी चाहते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि वो छोटी छोटी चीज़ें हम समझें, और उसका मतलब क्या पर्पस है, डायरेक्टर का क्या इंटेंट था वो समझ में आता है हमको। इससे हमें क्या ऑडियंस में किस तरह की फीलिंग्स वो लाना चाहता है इस तरह के एलिमेंट्स यूज करके। तो ये तो डायरेक्टर्स जो हमने स्टाइल की बात करी और हमने ट्रेंड्स और कल्चर की बात करी है। आई थिंक जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं, और अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट की जा सकती हैं सारी फिल्म। या देर आर सम फिल्म्स जहाँ पर ओपन एंडेड आप हम क्लाइमेक्स देखते हैं, वहाँ पर अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है जो ऑडियंस है उसका। तो बेसिकली जब हम फिल्म अप्रिसिएशन का फिल्म अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक फिल्म को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम जितना डिटेल में हर चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएँ। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्वेंट होंगे उतना आपको बेटर समझ में आएगा, और रिपीटेड वॉचिंग इज़ मस्ट। जितनी भी अच्छी फिल्म्स हैं आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और उसके बाद डिस्कस करिए, बिकॉज़ ये सब्जेक्टिव है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो क्लासेस हैं, उसमें आप जब डिस्कस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ चीज़ें जो शायद आप नहीं सोच रहे थे, वो कोई और सोच रहा है। जैसे अभी अभी हमने देखा कि अलग-अलग सीन्स जो हैं वो अलग-अलग लोगों ने नोटिस किए। तो हर सीन एक बारी में याद होना बड़ा मुश्किल है, जो रेगुलरली यही काम करते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो लेकिन डिस्कस करोगे तो अपने आप ही फिर वो चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। तो दैट्स हाउ लाइक वी शुड डू इट, और आई होप लाइक क्लास सबको अच्छी लगी होगी। इट्स
इंटरेक्टिव सेशन, थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है तो और अच्छा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टीचर्स ने ज़्यादा इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट से, बट लेकिन अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि आपके पास इस तरह की टीचर्स हैं जिनसे आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो घर बैठ के अकेले आप इसमें आपने खुद से देख लिया और खुद से सोच लिया, उसका कुछ मतलब नहीं है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक इसका कुछ मतलब नहीं होगा। और ये ऐसी चीज़ है, इसके लिए आप ये इस डिस्कशन के लिए अलग से क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती। आई एम श्योर कि सारे लोग फिल्म देखते होंगे और फिल्म डिस्कस करते होंगे, लेकिन आपको बस कोशिश ये करनी है कि छोटी-छोटी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाएँ और कैमरा और एडिटिंग के अलावा जो है वो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाएँ, क्योंकि इनिशियली हमारा ध्यान सिर्फ़ कैमरा और एडिट पर होता है। जो डायरेक्टर का क्या स्टाइल है, जो ट्रीटमेंट है, इस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जो विजुअली हमको दिख रहा है उस पर, कलर पैलेट पे और बाकी कल्चर पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा पुरानी फ़िल्म्स देखने की कोशिश करें, जो जो भी पसंद है, क्योंकि हर तरह की फ़िल्म्स अवेलेबल हैं। जो भी आपको जॉनर पसंद है, हर तरह के जॉनर में आपको ग्रेट फ़िल्म्स मिल जाएँगी देखने के लिए। तो अगर लोगों को लगता है कि पुरानी फ़िल्म्स बोरिंग होती हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको थ्रिलर में और हॉरर में और मिस्ट्री में भी आपको बहुत ग्रेट फ़िल्म्स हैं जो बनी हुई हैं, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है डिस्कशन करना। आपके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं जो फ़िल्म बफ़्स हैं, उनके साथ आप कभी भी डिस्कस करिए। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ वो भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। So it was a great discussion, great session that we just experienced. There are a few questions that students were asking, and one of the questions is that you have illustrious career as a filmmaker. So is there any one incident that you would like to share with our students, that completely changed your perspective towards filmmaking? Anything, any special incident? I don't know, like ऐसा कुछ, there's nothing top of my mind, लेकिन मतलब मैं जनरली बोल सकता हूँ कि जो फिल्म मेकिंग का जितना जो प्रोसेस है, इट्स वेरी डिफरेंट जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो, और काफ़ी मैकेनिकल भी है। तो शूट के वक्त आपको जो सीखने का जो सीखने वाली जो चीज़ है वो बहुत कम रहती है। मतलब आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। तो आई वुड से कि मतलब मैंने इतने सालों में ये समझा है कि जितना आप फिल्म देख के सीख सकते हैं और फिल्म बना के सीख सकते हैं, उतना आप असिस्ट करके नहीं सीखते। तो जो भी बडिंग फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए फिल्म देखने से बेटर कोई पढ़ाई नहीं है। और आप जब आप खुद अपना कुछ बनाएं तो बहुत सिंपल है, कोई भी अच्छी फिल्म, कोई भी सिंपल फिल्म जो आपको पसंद है, आप एज इट इज रिक्रिएट करने की भी अगर कोशिश करेंगे तो इवन इन दैट प्रोसेस यू लर्न अ लॉट। तो या दैट्स इट। Great, sir. So like making films from scratch is actually one of the exercise that you will recommend, right? Yeah. Even why not from a mobile phone? हाँ हाँ, बिल्कुल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अच्छा कैमरा है नहीं है, लाइट है कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक सिंपल से सिंपल 2 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी फिल्म निकाल लीजिए जो आपको पसंद हो और अपने हिसाब से उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करिए। अगर आप वो कर लेते हैं तो मतलब दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग। करेक्ट। सर मेरा एक सवाल आपके लिए है सर। जी। सर जैसे आपने अभी एक फिल्म बनाई जिसकी ड्यूरेशन 35 मिनट्स की है, भास्कर बेचैन, आपने वो फिल्म डायरेक्ट करी, और ओटीटी के इस दौर में जहाँ पे आप आजकल हम सीरीज देखते हैं 8 एपिसोड की, 10 एपिसोड की, और उसमें एक बिल्डअप का एक टाइम होता है, बिल्डअप का एक स्कोप होता है, उसमें आपको उस पीक पे ले जाते हैं और फिर वहां से जब हम रेजोल्यूशन तक पहुंचते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम होता है जिसमें सस्पेंस को भी मेंटेन किया जा सकता है। तो ऐसे में 35 मिनट की फिल्म में ये कितना चैलेंजिंग था, यही सारी चीजों को कम समय में मेंटेन करना,
और आप जो बडिंग फिल्म मेकर्स हैं उनको आप इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस अगर कुछ शेयर करें, हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू इंश्योर कि वो जो बेचैनी है वो दिखे, और जब वो एंड में जब कंक्लूजन तक हम जाएं तो जो एक सेटिस्फेक्शन जो हम उससे लेते हैं वो भी हम कैसे पा सकते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम फिल्म मेकिंग पढ़ते हैं, इवन जब हम राइटिंग पढ़ते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है कि हर सीन जो है, हर सीन की एक स्टोरी है। तो उस सीन में आपका एक पर्पस होता है और उसका एक स्टार्ट होता है और एंड होता है। हर सीन का एक कन्फ्लिक्ट है और एक रेजोल्यूशन। उसी तरीके से कुछ सीन्स मिला के एक सीक्वेंस बनता है और कुछ सीक्वेंसेस मिला के एक फिल्म बनती है। तो डेफिनेटली ये तो मैं बोलूँगा ही कि वो चैलेंजिंग रहता है किसी भी स्टोरी को स्क्रीन तक पहुंचाने में। अपना चैलेंज हर तरह का, हर फिल्म में, हर ड्यूरेशन में अलग तरह के चैलेंजेस रहते हैं। लेकिन जब हम एक कहानी की बात करते हैं, तो अगर आपको मालूम है कि किस तरह का कन्फ्लिक्ट है आपके पास, कितना सिंपल या कितना डिफिकल्ट कन्फ्लिक्ट है, एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जो सब लोग इतनी आसानी से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो उसको हमें थोड़ा सा ज़्यादा बार उसको दिखाना पड़ता है और उस कैरेक्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझानी पड़ती हैं। अगर कोई सिंपल कन्फ्लिक्ट होता है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं डेफिनेटली। जैसे अगर हम किसी भी एक रिवेंज स्टोरी की बात करें, अगर हम फर्स्ट सीन में देखते हैं, जैसे पुरानी फिल्म्स में देखते थे कि फर्स्ट सीन में ही माँ बाप का मर्डर हो गया, तो उसके बाद फिर हमें ज़्यादा कुछ जो कैरेक्टर है उसको उसके लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अच्छा वो रिवेंज लेने जा रहा है या लेगा। तो ऐसे में आसान हो जाता है। लेकिन जब आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ आप बोलना चाहते हैं कि ये इस कैरेक्टर की यही एक प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है डेफिनेटली। आपको एक बारी में, आप एक सीन में आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है वेब सीरीज़ की और बाकी चीज़ों की, तो जितनी वेब सीरीज़ हैं वो आप फिल्म्स की तरह भी आप उनको दिखा सकते हैं और फिल्म्स को आप वेब सीरीज़ की तरह दिखा सकते हैं। उतना इंटरेस्टिंग होना वो चैलेंज होता है कि आप एक जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अभी उसकी एक सीरीज़ आ रही है और वो ऑलरेडी एक फिल्म है, तो अब आप उसको एक सेम कहानी को जो हम 3 घंटे में देख चुके हैं, हम उसको आई थिंक 8, 10 या 12 घंटे में देखेंगे। तो वहाँ पर चैलेंज ये होता है कि आप हर सीन को इंटरेस्टिंग बनाएं। जब आपकी एक छोटी कहानी है, छोटी फिल्म है, तो मुझे लगता है वो उस हिसाब से तो आसान है, क्योंकि आपके पास जो सीन्स हैं वही कम है। तो आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कम मेहनत है, स्टोरी दिखाने के लिए ज़्यादा मेहनत है। फिल्म में आपको स्टोरी पे आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, एक्सप्लेन करने का मौका होगा, लेकिन हर सीन इंटरेस्टिंग रहे, लैग ना करे। कुछ सीन्स में जैसे हम बहुत सारी ऐसी फिल्म होती हैं जो बीच में सिर्फ एक्सप्लेनिंग होती है बहुत सारी, कि ये इसलिए हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, आप सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, तो वहाँ पर फिल्म लैग कर जाती है। तो जो चैलेंज है वो यही है कि जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और जो हर सीन इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों पे बराबर ध्यान दिया जाए। Thank you, sir. Thank you. So one more question that I would like to ask is that any recent film that you liked, or any character basically that you like the most, which is quite distinctive, and like जो आपको अच्छा लगा हो, any movie or any web series? Okay, recent में अगर recent की बात करें, ऐसे तो बहुत सारी हैं। रिसेंटली तो आई वुड से कि मतलब आई लाइक्ड RRR, और उसके बाद देन आई लाइक्ड विक्रम अ लॉट। तो जो डायरेक्टर है, ही हैज जो उसका स्टाइल है, इट्स वेरी जो इंट्रीगिंग है, थ्रू आउट एक तरह का सस्पेंस मेंटेन करके, सस्पेंस और टेंशन जो है वो मेंटेन रहती है। तो आई थिंक दैट आई वुड रिकमेंड देखने के लिए। ओके, माधव सर कोई और क्वेश्चंस है? ठीक है, फाइन। सो आई होप स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग लगा होगा आज का सेशन। इवन एक इनपुट मैं यहाँ पर देना चाहूंगी, जो पूरा हमने अभी डिस्कशन किया,
मुझे लगता है कि एक चैलेंज और है हमारे पास कि जो आज का व्यूअर है वो थोड़ा हेस्टी व्यूअर हो चुका है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है इस टाइम पर, व्यूइंग ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो हम पैटर्न सुनते हैं, मैंने एक वेब सीरीज को रात में खत्म कर दिया, एक वेब सीरीज को मैंने इतने घंटों में खत्म कर दिया, दिस इज अगेन अ वेरी चैलेंजिंग पैटर्न। मुझे लगता है फिल्म मेकर के लिए भी, आर्टिस्ट के लिए भी, जो पूरी प्रोडक्शन एंटायर टीम काम कर रही है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, उनके लिए भी ये एक बहुत चैलेंजिंग पैटर्न है जो इस टाइम का मुझे लगता है व्यूइंग पैटर्न है। एंड थैंक यू सो मच प्रिंस, आपने इतना बढ़िया सेशन दिया। आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स जिन्होंने भी स्टूडियो से और ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है सेशन के लिए, अगेन उनके लिए बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स निकल कर बाहर आए हैं जो फिल्म मेकिंग के लिए एज वेल एज फिल्म व्यूइंग के लिए बहुत जरूरी है। अगेन फिल्म मेकिंग के लिए फिल्म व्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और फिल्म व्यूइंग के लिए हमारे पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। दिस इज द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बीइंग एन व्यूअर ऑफ सिनेमा, बीइंग एन ऑब्जर्वर ऑफ सिनेमा। इसी बीच में मुझे लगता है कि सुष्मिता मैम, आई रियली वांट टू हियर फ्रॉम योर साइड, कोई आपका ऐसा कोई इनपुट आज के सेशन के लिए, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जब हम फिल्मों की बात करते हैं और फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, फिल्म एप्रिसिएशन एक अलग मतलब एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, बट जब हम फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म मेकिंग में स्टोरी के साथ जस्टिस करना बहुत जरूरी है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, लाइक हमें आर्टिस्ट उसका चुनना, हमें उसके साथ में स्टोरी को फॉलो करना, उसके साथ में और क्या रिक्वायरमेंट है, लाइक शूटिंग, लाइटिंग, उसका स्पेसिफिक एरिया चुनना, उसके लोकेशन देखना, वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो वो तभी हो सकता है जब हम स्टोरी के साथ जस्टिस कर रहे हैं। अगर हम लोकेशन गांव की ले रहे हैं तो गांव की लैंग्वेज, जो स्टार्टिंग में बात हुई कि हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल लैंग्वेज का यूज कर लें, लोकल लैंग्वेज का यूज कर लें, ट्रेडिशनल सॉन्ग का यूज कर लें, तो हम उसको स्टैब्लिश कर पाते हैं। तो फिल्म के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कि स्टैब्लिश कैसे हो, वो सारे पॉइंट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स अभी फिल्म एप्रिसिएशन जिन्होंने पेपर लिया है वो प्रॉपरली आज के जो सेशन है उससे बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, समझी होगी। तो इन सारी चीजों की इम्पोर्टेंस तभी बढ़ेगी तब जब वो इसको सीरियसली लेंगे और सीरियसली सारी चीजों के इम्प्लीमेंट करेंगे। यस डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मैं एक चीज ऐड करना चाहूँगा। आपने जैसे अभी जो बोला कि प्रेजेंट ट्रेंड है जहाँ पर एक रात में ख़त्म कर देते हैं पूरी वेब सीरीज़, तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को और इवन टीचर्स को भी एक चीज़ सजेस्ट ज़रूर करना चाहता हूँ कि जैसे लाइक वी ईट एवरीथिंग, और उस खाने के बाद हमको उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, तभी जो वो हमारे बॉडी में लगता है उसका फ़ायदा तभी होगा। तो अगर हम उसी तरीके से जो भी हम देख रहे हैं, जो हमारा कंजम्पशन है, अगर वो कंजम्पशन हम रेगुलेट नहीं करेंगे तो हमें वो इट विल नॉट स्टे इन योर माइंड। तो अगर हम कोई भी फिल्म देख रहे हैं तो उसको इतना टाइम देना चाहिए फिल्म देखने के बाद कि हम उसको प्रोसेस कर पाए। जैसे अभी हमने देखा कि अलग अलग सीन्स जो हैं वो अलग अलग लोगों ने नोटिस किए, तो हर सीन एक बारी में याद होना बड़ा मुश्किल है। जो रेगुलरली यही काम करते हैं उनके लिए भी मुश्किल है। तो लेकिन डिस्कस करोगे तो अपने आप ही फिर वो चीज़ें दिमाग में रह जाती हैं। तो दैट्स हाउ लाइक वी शुड डू इट। और आई होप लाइक क्लास सबको अच्छी लगी होगी। इट्स इंटरेक्टिव सेशन, थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है तो और अच्छा होता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे टीचर्स ने ज़्यादा इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट से, बट लेकिन अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि आपके पास इस तरह की टीचर्स हैं जिनसे आप ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो घर बैठ के अकेले आप इसमें आपने खुद से देख लिया और खुद से सोच लिया, उसका कुछ मतलब नहीं है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे तब तक इसका कुछ मतलब नहीं होगा। और ये ऐसी चीज़ है, इसके लिए आपके इस डिस्कशन के लिए अलग से क्लासरूम की ज़रूरत नहीं होती। आई एम श्योर कि सारे लोग फिल्म देखते होंगे और फिल्म डिस्कस करते होंगे, लेकिन आपको बस कोशिश ये करनी है कि छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व की जाएं, और कैमरा और एडिटिंग के अलावा जो है वो भी चीज़ें ऑब्जर्व की जाएं, क्योंकि इनिशियली हमारा ध्यान सिर्फ कैमरा और एडिट पर होता है,
जो डायरेक्टर का क्या स्टाइल है, जो ट्रीटमेंट है, इस पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। जो विजुअली हमको दिख रहा है उस पर, कलर पैलेट पे और बाकी कल्चर पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। इसके अलावा पुरानी फिल्म्स देखने की कोशिश करें, जो भी पसंद है, क्योंकि हर तरह की फिल्म्स अवेलेबल हैं। जो भी आपको जॉनर पसंद है, हर तरह के जॉनर में आपको ग्रेट फिल्म्स मिल जाएंगी देखने के लिए। तो अगर लोगों को लगता है कि पुरानी फिल्म्स बोरिंग होती हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको थ्रिलर में और हॉरर में और मिस्ट्री में भी आपको बहुत ग्रेट फिल्म्स हैं जो बनी हुई हैं, तो वो भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन करना। आपके पास इतने अच्छे टीचर्स हैं जो फिल्म बफ्स हैं, उनके साथ आप कभी भी डिस्कस करिए। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ वो भी सीखेंगे और आप भी सीखेंगे। So that's it from my side. So with this, I conclude I conclude the session with my formal vote of thanks. Thank you to Prince Shadwal. You have spared the time and you have actually made this session so interactive and learning. I'm sure that students and faculty members both have benefited from this session. My sincere thanks to all the faculty members. Dean of Media School, Professor Dr. Amrish Saxena, Head of Media School, Professor Dr. Susmita Pala, and my dear students who have joined this session today. So tomorrow we will be having the third day of our session orientation program, and it will be related to the media research subject. Dr. Piyashi Datta, the senior faculty member from Amity University, Noida, will be taking your media research orientation session tomorrow. So till then, stay tuned. Thank you so much for joining us today. The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.